Now, I would like to welcome you all to today's session on the pedagogy of the oppressed. Today, we are honored to have the presence of Dr. Asghar Ali Dashti with us as our guest speaker for the session. Dr. Asghar Ali Dashti has been serving the Department of International Relations, Federal Urdu University, Karachi since 2008. Currently, he is chairman and HOD at the Department of International Relations. He is serving as the director evening program Abdul Haq campus and has been member search committee for vice chancellor of Federal Urdu University. He holds a PhD degree from the same university on the topic of Pakistan-America military relations. Dr. Dashti is also working as an in charge of MPhil PhD program offered by the department. He is HEC approved research supervisor. He is assistant editor of the research journal Wifaqiyan, Research Journal of the Social Sciences. He is research supervisor at Area Study Center for Middle East and Arab Countries, University of Balochistan, Quetta. He is member of Board of Studies, Department of the International Relations of Benazir Bhutto Shaheed University, Lyari. He is also a gold medalist in securing first position in Masters in International Relations. His area of interest is the study of political and social movements around the world. He is also author of a book titled Dictionary of International Relations, published by Federal Urdu University. He is member of Human Rights Commission of Pakistan. He is part of Indigenous Rights Alliance and board member of Sindhu Vas Foundation. There are a number of international and national research papers on his credit. He has also attended international conference as a presenter. So before Dr. Asghar starts the talk, I would like you all to please scan the QR code. Okay, I would like you to scan the QR code so that if you have any questions during the session, you can send those to the Mentimeter, sorry. And we also have online participants with us. I would ask them to do the same so that we can take their questions. Okay, so over to you, Dr. Asghar. थैंक यू सो मच। जो लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं वो कोड अगर इसके ना भी करें तो इशू नहीं है, आप डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो मैं IED AKU और डॉक्टर फरीद पंजवानी और मिस यास्मीन महबूब साहिबा का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे आज इनवाइट किया और एक मौका दिया, एक अपॉर्चुनिटी कि मैं आप लोगों से इस मौजू पर गुफ्तगू कर सकूँ। तो आज जो हमने थीम एक सिलेक्ट किया है वो बुनियादी तौर पर है पेडागोजी ऑफ द ऑप्रेस्ड। ये थीम सिलेक्ट करने का मकसद ये था कि हम इस थीम से रिलेटेड जो एजुकेशनल इश्यूज हैं हम उन्हें आपके साथ डिस्कस करें, उन्हें आपके साथ शेयर करें और एक गुफ्तगू करें। तो मेरा ख्याल है कि इसे लेक्चर के तौर पर नहीं लेना चाहिए, बल्कि एक गुफ्तगू, एक डायलॉग, एक मकालमा जो कि इस पेडागोजी ऑफ द ऑप्रेस्ड का थीम भी है। बुनियादी तौर पर ये एक बुक है रिटन बाय पाओलो फ्रेरे, एक एजुकेशनिस्ट है ब्राजीलियन, फिर 70 में ये बुक जो है पब्लिश होकर हमारे सामने आई है। तो उस बुक में बहुत सारे सवालात किए गए हैं। हाँ, तो इस बुक में बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो उठाए गए हैं तालीमी निज़ाम पर। चूंकि ये बुक 1970 में लिखी गई है तो हो सकता है कि बहुत सारी चीजें या सूरत-ए-हाल अब कुछ बेहतर हो, लेकिन बुनियाद अभी तक वही है जो कि इस बुक के कॉन्टेक्स्ट में हमें बताया गया है या पढ़ाया गया है। बुनियादी तौर पर इस बुक में बैंकिंग मॉडल ऑफ एजुकेशन के बारे में हमें बताया गया है, बैंकिंग थ्योरी ऑफ एजुकेशन या बैंकिंग कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन। तो वो क्या है?
फ्रेरे कहते हैं कि जो बैंकिंग मॉडल ऑफ एजुकेशन है उसमें एक जो टीचर होता है वो लाइक जस्ट एक बैंक क्लर्क होता है। एक बैंक क्लर्क के तौर पर वो स्टूडेंट्स को फिल करता है, डिपॉजिट करता है, जैसे अकाउंट्स में हम डिपॉजिट करते हैं। अब स्टूडेंट्स का काम ये है कि वो उस डिपॉजिट को स्टोर करे, मेमोराइज करे और फिर उसे रिपीट करे। तो ये एक मुस्तकिल अमल होता है जिसको फ्रेरे जो है वो बैंकिंग मॉडल ऑफ एजुकेशन कहता है। फ्रेरे ये भी कहता है कि जो ये मॉडल ऑफ एजुकेशन है इसमें जो एक उस्ताद और एक शागिर्द का जो रिश्ता होता है ये बहुत ही बेजान सा होता है, बहुत ही बेमजा होता है, लाइक एक पतरा जाने वाला रिश्ता टीचर और स्टूडेंट का। उस रिश्ते में कोई जान नहीं होती है, क्योंकि जब भी उस्ताद कोई कंटेंट बयान करता है, कोई लेक्चर देता है या कोई गुफ्तगू करता है, वो हकीकत से बहुत दूर होती है। हकीकत जो कि एक स्टूडेंट के जो एग्जिस्टेंशियल जो एक्सपीरियंस है, आपका एक वजूद है, आप चीजों को किस तरह से लेते हैं, जबकि वो जो लेक्चर है, वो जो कंटेंट है, वो उससे मैच नहीं कर रहा। और फिर टीचर्स हमेशा चीजों को एक कंपार्टमेंटलाइज्ड वे में पेश करते हैं, जैसे कि इल्म जो है वो बहुत सारे खानों में बटा हुआ है। इल्म जो है वो इंटीग्रेटेड नहीं है, इल्म जो है वो जुड़त उसमें नहीं है, वो इंटरलिंक्ड नहीं है, बल्कि कंपार्टमेंटलाइज्ड है। एज अ पार्ट उसकी शक्ल पेश की जाती है, एज अ होल उसे नहीं दिखाया जाता। तो वो चीजें उस तरह से अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं स्टूडेंट्स। तो ये एक इशू है कि जिस तरह का निज़ाम तालीम हमारे पास है उसमें यही होता है कि हम जो है डिटेस्ट करते हैं रियलिटी को, हकीकत को जुदा करके बयान किया जाता है। और जो एक डिस्कनेक्शन है टोटलिटी का, यानी कि एज अ होल पिक्चर हमें दिखानी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट के हवाले से। आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है, बल्कि जो कंटेंट है वो नैरेटिव नेचर का है, यानी कि बयानिया किरदार का। जैसे मैं इस वक्त एक चीजें बयान कर रहा हूं और आपका काम है कि उसे सुनते जाएं। फ्रेरे कहता है कि एजुकेशन को इस तरह से नहीं होना चाहिए कि आप एक नैरेटिव जो है उसकी नेचर को लेके सामने आते हैं, जिसमें टीचर जो होता है वो होता है एक नरेटिंग सब्जेक्ट, लाइक एक्टिव, जैसे कि इस वक्त मैं खड़ा हुआ हूं। और जो स्टूडेंट्स होते हैं वो एक लिसनिंग ऑब्जेक्ट हैं। आपका काम है महज सुनना, खामोशी के साथ, सब्र के साथ, बगैर कोई सवाल उठाए। खैर आज तो हम सवाल लेंगे, आप लोगों से डिबेट भी करेंगे, गुफ्तगू भी करेंगे, लेकिन नॉर्मली जो सिस्टम है वो इसी तरह का है कि आप सिर्फ सुनते जाएं और टीचर जो है वो बोलता जाएगा। तो टीचर एक एक्टिव है, नरेटिंग सब्जेक्ट है, स्टूडेंट जो है वो एक लिसनिंग ऑब्जेक्ट है, एक पैसिव है जिसका काम सिर्फ सुनना है। अब जो ये डिसकनेक्शन है रियलिटी से, ये जो एक डिटेच्ड है आप हिस्ट्री से, जो चीजें जो चैप्टर्स आपको पढ़ाई जाती हैं वो समझ में नहीं आती। अब यहाँ पर हम एक इस फ्रेरे की बात को एक लोकल मिसाल के जरिए समझने की हम कोशिश करेंगे। मैं आपसे एक सवाल करूंगा आप लोगों से, आप कोई भी जवाब दे सकता है। पाकिस्तान किसने बनाया? किसने? लोगों ने। और कायदे आजम ने, और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, और कांग्रेस ने। देखिए अब इसके मुख्तलिफ जवाब आए। सब लोगों ने पाकिस्तान स्टडीज पढ़ी है। आप लोग, मुझे नहीं पता बीएड के स्टूडेंट हैं, एमएड के स्टूडेंट हैं या किस लेवल के हैं। पाकिस्तान स्टडीज बहरहाल हम सब ने पढ़ी है, लेकिन हम ये देखते हैं कि हमारे जवाब किस कदर मुख्तलिफ हैं। ये मुख्तलिफ क्यों है? इसका मतलब है कि आप लोग रेफरेंस बुक्स भी पढ़ते हैं, आप लोग इंडिपेंडेंट रिसर्च भी करते हैं, आप लोग सिर्फ टेक्स्ट बुक की सच्चाई को ही हकीकत नहीं मानते हैं, बल्कि आप हकीकत को कहीं और भी तलाश करते हैं। अब जैसे कि इन्होंने कहा, मैं यहाँ से शुरू करूंगा, कायदे आजम ने, कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने, तो ये डिटेच्ड फ्रॉम हिस्ट्री और डिसकनेक्शन विद टोटलिटी का जवाब है। मुल्क कोई रोस्ट्रम नहीं है कि उसे बनाया जाए। ये सवाल ही इटसेल्फ इतना गलत है कि पाकिस्तान किसने बनाया, इस सवाल को ही क्वेश्चन होना चाहिए। इस सवाल का ही पोस्टमार्टम होना चाहिए कि आया कोई ये पीस ऑफ केक है, ये कोई इस तरह का व्हाइट बोर्ड है, ये कोई माइक है, ये कोई कैमरा है कि आपने बना दिया। और हम इस बनाने वाले सवाल को हकीकत समझते हुए उसका जवाब भी दे रहे हैं। हम ये नहीं सोच रहे
क्रिटिकल थिंकिंग जो हमारी है, जो हमारा क्रिटिकल कॉन्शियसनेस है, एक जो क्रिटिकल विजडम होना चाहिए हमारा कि दिस क्वेश्चन इज रॉन्ग। एक बहुत बड़ी स्ट्रगल है अवाम की, पॉलिटिकल पार्टीज की, मुख्तलिफ तबकात की, और जैसे कि किसी ने कहा ब्रिटिश, ऑफ कोर्स ब्रिटिश, पाकिस्तान ब्रिटिश एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के जरिए वजूद में आया है। और ये सिर्फ ऐसे ही वजूद में नहीं आया, बल्कि अगर आप देखें कि बरतानिया के पूरे उस सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को, कि जिसमें मुख्तलिफ जो है वो कॉन्स्टिट्यूशंस आते हैं, अगर उस पूरी कॉन्स्टिट्यूशनल जर्नी को आप स्टडी करें, उस कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट को आप स्टडी करें, कि जो 1858 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, देन फाइनली 1947 का इंडिपेंडेंस एक्ट। ये एक तरफ है, एक तरफ अवाम है, एक तरफ सियासी पार्टीज हैं। तो ये जवाब के महज मोहम्मद अली जिन्ना ने बनाया या किसी ने बनाया, ये एब्स्ट्रैक्ट एंड मैकेनिकल आंसर है। और फ्रेरे यही कहता है कि जो हमारा ये जो वे ऑफ टीचिंग है, ये मैकेनिकल एनालिसिस पर ही बेस करता है। 2 + 2 4, जवाब गलत नहीं है, लेकिन कभी किसी ने ये नहीं कहा कि भाई ये 2 + 2 3 क्यों नहीं होते, 2 + 2 5 क्यों नहीं होता। कोई लॉजिक तो होगी कि 2 + 2 4 ही क्यों होता है। आई एम नॉट एन एक्सपर्ट ऑफ मैथमेटिक्स, लेकिन कोई साइंस है ना, कोई उसका एल्गोरिथम होगा, कोई उसकी फिलॉसफी होगी। ये स्कूलों में नहीं पढ़ाई जाती, सिर्फ 2 + 2 4 ये पढ़ाया जाता है, जिसको आप मेमोराइज करते हैं, अपने अंदर डिपॉजिट करते हैं, बैंकिंग मॉडल ऑफ एजुकेशन, देन उसे रिपीट करते हैं। लेकिन उसकी साइंस या उसकी पूरी एक फिलॉसफी है, वो हमें नहीं बताई जाती। जैसे कि पाकिस्तान किसने बनाया, इसी तरह से, यानी कि जैसे कि कोई चीज थी, 2 घंटे में बना लिया गया। तो देखिए, हिस्ट्री जो है या जो एजुकेशन है, ये कोई स्टेगनेंट चीज नहीं है। लेकिन बैंकिंग मॉडल ऑफ एजुकेशन में एजुकेशन को स्टेगनेंट, लाइक जामिद, एक रुकी हुई चीज के तौर पर दिखाया जाता है, यानी कि जिसमें कोई हलचल नहीं है। वो कहते हैं कि एवरीथिंग इज पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स इज एवरीथिंग। ये जो हमारा तालीमी निज़ाम है ना, जिसको हम सिर्फ एक तालीम के तौर पर रहते हैं, हमारे जैसे पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटीज में ये जो सिस्टम ऑफ एजुकेशन है, ये बुनियादी तौर पर उस पॉलिटिकल कल्चर को ही डिफाइन करता है। एक पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटी, एक हम कॉलोनी रहे हैं ब्रिटिश की, ठीक है ना, हम आजाद कब हुए? ये अच्छा जवाब है वैसे। आमतौर पर हर साल 14 अगस्त को हमारा ऑफिशियल इंडिपेंडेंस डे होता है। मैं कहूंगा कि ये एक कंटिन्यूएशन ऑफ कॉलोनियल सिस्टम है, और अब हम एक पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटी हैं। और पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटी बेस करती है एक खास किस्म के इकोनॉमिक सिस्टम पर, जो कि बेस्ड करती है एक्सप्लॉयटेशन एंड प्रॉफिट पर। ये जो माशी निजाम है, जो कि लूट कसूट की बुनियाद पर कायम है, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक सियासी निजाम की जरूरत होती है। उस सियासी निजाम को मानने के लिए एक तालीमी निजाम की जरूरत होती है। उस जबर पर मुबनी सियासी निजाम को, जो कि रिप्रेशन को क्रिएट करता है, उसको आप मानेंगे कैसे? उसकी आइडियोलॉजी को आप एक्सेप्ट कैसे करेंगे? तो उसके लिए उसके साथ एक सपोर्टिव एजुकेशनल सिस्टम को डेवलप किया जाता है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि तालीम का मकसद क्या है, पर्पस ऑफ एजुकेशन, मकसद कुछ भी बता दें, कोई भी जो आपके जहन में। यस, सोसाइटी की जरूरियात को फुलफिल करना। कोई और बताएगा तालीम का मकसद, ऑब्जेक्टिव, पर्पस? सर्चिंग योर सोल, रूह की तलाश, और टू मेक सिविलाइज सोसाइटी, एक मुहज़्ज़ब माशरे का कयाम, और रियलिटी। ये जरा बेहतर एक जवाब है कि रियलिटी तालीम का मकसद। अब अगर मैं आपसे ये कहूं कि जनाब तालीम का कोई मकसद नहीं होता, तो आप कहेंगे कि ये कौन सी बात है? ये आईईडी में खड़े होकर एक शख्स कह रहा है कि तालीम का कोई मकसद ही नहीं है। जी यस, तालीम का कोई मकसद नहीं होता। मकसद तालीमी पॉलिसीज बनाने वालों का होता है, उस पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करने वालों का होता है। और आपको और हमें ऐसे लगता है कि हमारी जितनी एजुकेशनल पॉलिसीज हैं,
47 से लेकर आज तक 2023 तक, ये आपने बनाई है या हमारे पॉलिसी मेकर्स ने बनाई है या हमारी गवर्नमेंट्स ने बनाई है? वैसे आपको क्या लगता है एजुकेशनल पॉलिसीज कौन बनाता है? पॉलिसी मेकर्स, फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, और पॉलिटिशियंस, और ब्यूरोक्रेसी, और हमारी पाकिस्तान की एजुकेशनल पॉलिसीज इनमें से कोई भी नहीं बनाता। अब ये एक सवाल है, एक स्टेटमेंट है कि हमारी एजुकेशनल पॉलिसीज, ये लोग जिनका अभी नाम लिया गया, टीचर्स, पॉलिसी मेकर्स, ब्यूरोक्रेट्स एंड फेडरल एंड प्रोविंशियल एक्सेट्रा, कोई भी नहीं बनाता। हमारी पॉलिसीज बाहर से आती हैं, हमारी ब्यूरोक्रेसी उसे सिर्फ इम्प्लीमेंट करती है, हम उसे इंडिजिनाइज करते हैं, हम उस पॉलिसी को लोकलाइज करते हैं, थोड़ा सा अपना स्ट्रक्चर उसमें डाल देते हैं। पाकिस्तान की पहली एजुकेशनल पॉलिसी, फर्स्ट 5 ईयर प्लान 50 to 55, जॉर्ज ग्रांट हमारा एडवाइजर था एजुकेशन पर, जो कि हार्वर्ड ग्रुप से ताल्लुक रखता था। फोर्ड एक फाउंडेशन है, आपने नाम सुना होगा, सर्च कर लीजिएगा, ये नाम लिख लीजिएगा जो मैं कह रहा हूं आपसे, इन नामों को राइट डाउन कर लीजिएगा, जॉर्ज एफ ग्रांट, फोर्ड फाउंडेशन एंड हार्वर्ड ग्रुप। तो ये पहली जो हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी आई, जो हमारा 5 साला मंसूबा आया, जो 5 ईयर प्लान आया जिसमें एजुकेशन भी इंक्लूड था, ये किसी ने नहीं बनाई है, ये तो ग्रांट साहब ने बनाई थी। और हम उसको सिर्फ ले लेते हैं, अपनी असेंबलीज के जरिए लागू कर लेते हैं, एक टेक्स्ट बुक बोर्ड बना लेते हैं और चीजें चलती है। अब सवाल ये है कि ये लोग हमारी एजुकेशनल पॉलिसीज क्यों बनाते हैं? हायर एजुकेशन कमीशन का नाम सुना है आप लोगों ने? HEC, ये इदारा किसने बनाया आपके मुताबिक? जनरल मुशर्रफ के दौर में बना? यस ऑफ कोर्स, जनरल मुशर्रफ के दौर में बना। क्यों बना, कैसे बना, किसने बनाया, फंडिंग किसने की, पाकिस्तान में कौन से लोग काम करने वाले थे, और इतनी बड़ी रिफॉर्म्स की जरूरत क्यों महसूस हुई? ये क्वेश्चंस मिसिंग हैं हमारे एजुकेशनल सिस्टम से। हम सिर्फ एक सिलेबस, टेक्सोनॉमी, निसाब, ये यूं यूं इस तरह करते हैं चीजें, लेकिन हम पॉलिटिक्स इज एवरीथिंग। तो जो पॉलिटिसाइजेशन ऑफ एजुकेशन है, इस पर हमारी नजर नहीं है कि हम एक खास माइंडसेट क्रिएट करना चाहते हैं, एक ऐसे लोग बकौल फैज अहमद फैज के जिनमें हिम्मत कुफ्र ना हो, कुफ्र माने इनकार करना, जिनमें जुर्रत तहकीक ना हो, छोटे छोटे दिमाग हम पैदा करना चाहते हैं। जितनी भी हमारी एजुकेशनल पॉलिसीज हैं वो हमें रैशनल, क्रिटिकल नहीं बनाती हैं, बल्कि जो टीचर ने पढ़ाया वही आप लोग कर ले, जो कि पेडागोजी ऑफ द ऑपरेस्ड, जो ऑपरेसर्स की तरफ से आप पर नाफिज होती हैं और आप उसको ठीक समझते हैं, आप उसको ठीक समझते हैं। जैसे कि उस बुक में सिमोन दी बोवेर का एक कोट था कि मजलूमों के शऊर को तब्दील किया जाता है। आपका जो कॉन्शियस लेवल है ना ऑपरेस्ड का, उसे तो तब्दील किया जाता है, लेकिन उन हालात को नहीं जिनकी वजह से ये जुल्म है। यानी कि अगर यहाँ पर रोड टूटा हुआ है तो हम सके एडजस्ट कर लें, आप ठीक है, पानी नहीं है ठीक है, कोई टैंकर डलवा लें, गैस नहीं है तो ठीक है, सिलेंडर भरवा लें। मजलूमों के शऊर को तब्दील किया जाता है, उन हालात को नहीं कि गैस आनी चाहिए, एडजस्ट करें जी, एडजस्ट करें। तो उस शऊर को तो चेंज करने की कोशिश हो रही है तालीम से। आखिरकार है तो हमारा ये कह करना कि सारे जुल्म सितम आप सब बर्दाश्त कर लें। अगर आप क्रिटिकल होंगे तो आप क्वेश्चन करेंगे, आप क्रिटिकल नहीं है तो आप क्वेश्चन नहीं करेंगे। ये सबसे बड़ा मसला है हमारे एजुकेशनल सिस्टम का। अब हम और आगे चलते हैं। एक जियो में एक प्रोग्राम चलता था 2012-13, अगर आप में से, आप लोग तो खैर छोटे हैं, तो याद हो, अलिफ ऐलान, जरा सोचिए, अलिफ बे पे, बढ़ेगा पाकिस्तान, लिखेगा पढ़ेगा पाकिस्तान, बढ़ेगा पाकिस्तान। किसी ने सुना है? जियो टेलीविजन पर एक प्रोग्राम आता था, कार्टून टाइप का भी आता था, टेढ़ा वेढ़ा होके वो जो करता था। अब आपको लग रहा है कि जी जियो वाले कितने देखे अच्छे लोग हैं, मीर खलीलुर रहमान, मीर शकीलुर रहमान, के एजुकेशन पर कितना काम कर रहे हैं। ये ब्रिटिश फंडेड प्रोजेक्ट था, ट्रांसफार्मिंग एजुकेशन इन पाकिस्तान प्रोजेक्ट। भाई बरतानिया वाले आपको क्यों पैसे दे रहे हैं, करोड़ों पाउंड्स क्यों दे रहे हैं?
क्योंकि वो कहते हैं कि ये हमारी स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट है, स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट। फ्री में कोई पैसा नहीं देता, करोड़ों पाउंड्स, उसमें से कोई 25 या 26 करोड़ सिर्फ मीर खलीलुर रहमान सोसाइटी को दिए गए। चूंकि आप सबसे बड़े चैनल है पाकिस्तान के, आपका अखबार सबसे बड़ा और जो है अखबार है, तो आप इस कैंपेन को प्रमोट कीजिए। फेडेफ एक इदारा है, फेडेफ बर्तानिया का इदारा है, आजकल उसका नाम चेंज है, कॉमनवेल्थ एंड फॉरेन फंड कर दिया है उसके नाम को। ये मुस्तकिल आपकी पॉलिसीज बनाता है। रिसेंटली जो लास्ट गवर्नमेंट थी जिसमें शफकत महमूद वजीर तालीम थे, अक्सर आपने लंदन कॉन्फ्रेंस, फिला कॉन्फ्रेंस, ये कॉन्फ्रेंसेस नहीं होती हैं, ये लोगों को लीगली रिश्वत दिया जाता है कि हम आपको टिकट देंगे, आप आए लंदन घूमें हमारे खर्चे पर, बर्तानिया के खर्चे पर, और ये जो एजुकेशनल पॉलिसीज है इनको जाके आप नाफिज कीजिए। अक्सर आपने सुना है कि पाकिस्तान के 2.5 करोड़ बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। ये रिसर्च किसकी है? ये कोई लोकल रिसर्च नहीं है। ये रिसर्च भी जो प्रोजेक्ट था वो, फिर उसका एक इदारा बनाया गया, इस्लामाबाद में उसका हेड ऑफिस बनाया गया, इल्मो आ गई, ये उनकी रिसर्च है। अच्छा, हमारा हर सियासतदान, हर MNA, हर MPA टीवी पर उसी रिसर्च के फैक्ट्स एंड फिगर को बोलता रहता है, और पाकिस्तान का हर इंस्टीट्यूशन, हर यूनिवर्सिटी, भाई ये रिसर्च ठीक भी है या नहीं? गलत है, ठीक है, और फिर इसको क्या कोई क्रॉस चेक किया गया? कोई हुकूमत ने कोई डेटा को चेक करने की कोशिश की? नहीं। पाकिस्तान एक स्ट्रगल के नतीजे में सामने आया। क्लास 1 से लेकर PhD तक कोई एक ऐसा कैरेक्टर नहीं है जिसने ब्रिटिश के खिलाफ जद्दोजहद की हो। हम इस वक्त सिंध में बैठे हुए हैं। हेमू कालानी का नाम किसने सुना है? रूपलो कोली। हेमू कालानी वॉज हैंग्ड बाय ब्रिटिश। रूपलो कोली मार दिया गया। सूर्या बादशाह, स्टेडियम रोड देखा है? उसका नाम है सैयद सबकतुल्ला शाह राशिदी रोड। ये सूर्या बादशाह का नाम था, जो मौजूदा पीर पगारा के परदादा थे। अंग्रेजों ने उन्हें मार दिया, उनकी लाश आज तक नहीं मिली है। हुर तहरीक, हुर मूवमेंट, पढ़िएगा, ये लिखिएगा आप लोग, हुर मूवमेंट क्या चीज थी। ये मैं सिंध की बात कर रहा हूं अभी। अब चलते हैं बलोचिस्तान। सिंध में एक और कैरेक्टर है। आप में से शोले फिल्म किसने देखी है? 1 2 3 4 5, चलें ठीक है। उसमें एक कैरेक्टर था इमाम साहब का, नाबीना, ब्लाइंड, उसके बेटे को मारा जाता है। उनका नाम क्या है? ओतार कृष्ण हंगल, AK हंगल। ही वॉज फ्रॉम कराची। ये कश्मीरी पंडित थे, कराची में टेलरिंग यूनियन के प्रेसिडेंट थे, और ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ मूवमेंट का हिस्सा थे। पाकिस्तान बनने के फौरन बाद उस इमाम साहब को कराची से निकाल दिया गया। ये हिस्ट्री गायब है हमारी, मिसिंग हिस्ट्री है, डिटेच्ड फ्रॉम हिस्ट्री, जो फ्रेरे कहता है ना कि डिटेच करके बयान करते हैं। आखिर क्यों बर्तानिया के खिलाफ जद्दोजहद करने वालों का नाम सिलेबस का हिस्सा नहीं है? नूरा मेंगल 9 साल बर्तानिया के खिलाफ लड़े, वड के, फिर ब्रिटिश जेल में वफात कर गए या मार दिए गए। गुलबीबी बलोच, जनरल डायर का नाम तो सुना है आप लोगों ने, जलियांवाला बाग, पंजाब, जनरल डायर 1919 वाकया। जनरल डायर के खिलाफ लड़ने वाली गुलबीबी बलोच, किताब द रेडर्स ऑफ सरहद हमने नहीं लिखी, खुद जनरल डायर ने लिखी, तो हमें पता चला कि कोई एक फीमेल कैरेक्टर थी जो जनरल डायर के खिलाफ लड़ती थी, लड़ी है, एक वॉर फेयर उन्होंने किया है। एक इंडियन फिल्म है पाले खान, जैकी श्रॉफ की, किस किसने देखी है? पाले खान फ्रॉम जॉब, क्वेटा, फिल्म इंडिया ने बनाई है। मंदोखेल था, बर्तानिया के खिलाफ लड़ा है। एक नाम आपको नहीं मिलेगा, एक नाम, सरतोर फकीर फ्रॉम KPK, फकीर ऑफ हैप्पी फ्रॉम फाटा, एक नाम आपको नहीं मिलेगा जिन्होंने बर्तानिया के खिलाफ स्ट्रगल की है। अशु केवल रामानी, बहुत नाम है, मुझे इतने जहन में अभी नहीं आ रहे। बिजार खान डोमकी फ्रॉम बलोचिस्तान, बहुत सारे नाम हैं जिन्होंने हजारों अंग्रेजों को मारा, फिर मारे गए, लेकिन नहीं, नाम है अल्लामा इकबाल का, राजा साहब महमूदाबाद का, मोहम्मद अली जिन्ना का, या और इस तरह के बहुत सारे, कैसर सैयद अहमद खान का। स्ट्रगलर, फाइटर्स, फ्रीडम फाइटर्स के नाम नहीं है। मलिका की 50वीं सालगिरह थी, क्वीन एलिजाबेथ। अल्लामा इकबाल ने एक तवील नज्म लिखी मलिका की सलामती पर,
कि तेरा साया हम पर कायम रहे, तेरी अजमत, और इस तरह का कुछ है, और है मेरे पास रखा हुआ है एज ए रेफरेंस। क्यों? मतलब अगर हम गुलाम थे, अगर ब्रिटिश एक कॉलोनियल पावर थी, कब्जागिर कुव्वत थी, मलिका उसकी नुमाइंदा थी, तो हम उसे दुआएं क्यों दे रहे थे? हम शायरी में जो है वो कासा लेसी क्यों कर रहे थे? नदवतुल उलमा का नाम तो सुना है आपने, एक बहुत बड़ा मदरसा है इंडिया में, हिंदुस्तान में। उन्होंने देगे तकसीम की, कुरान खानी की मलिका की 50वीं गोल्डन जुबली पर। तो ये कैरेक्टर्स निसाब में हैं। आपको पता है कि 74 तक मलिका बरतानिया का मुजस्सिमा पंजाब असेंबली के सामने लगा हुआ होता था। जब भुट्टो साहब ने इस्लामिक कॉन्फ्रेंस बुलाई, तो मारे शर्मिंदगी के वो मुजस्सिमा वहां से हटाना पड़ा कि अब तो इसको हटा दो। लेकिन हम 14 अगस्त को आजाद हुए थे, ऐसे ही है ना? आजादी, इंडिपेंडेंस हर साल हम मनाते हैं, झंडे लेकर, बैंड बाजे लेकर। लेकिन दिस इज कंटिन्यूएशन ऑफ कॉलोनियल एरा। ये तसलसल है, कोई चीज नहीं बदली है। जैसे कि मैंने कहा कि उस माशी निजाम को सपोर्ट करने के लिए एक सियासी निजाम, उस सियासी निजाम को मानने के लिए एक तालीमी निजाम, और उस तालीमी निजाम के अंदर बंद जहन जो सवाल नहीं कर सके, जो ये ना पूछ सके कि ये कौन सी एजुकेशन है, ये क्या हो रहा है, ये हमें फैक्ट्स क्यों नहीं बताए जाते। ये पॉलिटिकल लोग जो भी सच झूठ कहते हैं, लोग उसे तस्लीम करते हैं क्योंकि डिटेच्ड हिस्ट्री है, हमें चीजें मुकम्मल तौर पर पता नहीं है। अच्छा, फिर एक मिथ किताबों में, सिलेबस में हमें ये बताया जाता है कि अगर कायदे आजम को कुछ अरसा मिल जाता तो जी ये मुल्क बहुत तरक्की करता। ये सुना है ना आप लोगों ने, और आप इस पर यकीन भी रखते हैं, और ये हो जाता और वो आ जाता। तो उसी कायदे आजम ने वाइसराय माउंटबेटन से हलफ उठाया, खुद को गवर्नर जनरल भी बनाया 1935 के एक्ट, और उसके बाद वाइसराय काउंसिल के इकोनॉमिक एडवाइजर को अपना इकोनॉमिक एडवाइजर लगाया। जो शख्स हम पर हुक्मरानी कर रहा था, जो हमारे वसाइल लूट रहा था, बरतानिया, उसी वाइसराय काउंसिल के एक शख्स को जो है वो अपना इकोनॉमिक एडवाइजर लगाया गया, आर्चीबाल्ड रोलेंट। उसके बाद केस जेफरीज के जी ये पूरा जो सिस्टम है ब्यूरोक्रेसी का, ये आप बना के देंगे। गुलामी का तसलसल, अंग्रेजों ने हम पर हुकूमत की। देखिए, अंग्रेज जब यहाँ पर आए, तो आज हम यूनिवर्सिटीज में खड़े हुए ना, एक यूनिवर्सिटी है AKUB। यूनिवर्सिटीज किसने बनाई हैं बरे सगीर में? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। फर्स्ट यूनिवर्सिटी वाज फॉर्म्ड इन कैलकाटा, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा। जब ब्रिटिश ने यहाँ पर यूनिवर्सिटीज बनाई, तो 3 बातों का बड़ा ख्याल रखा। नंबर 1 कि हम एक कब्जागिर कुव्वत है, लोगों में क्रिटिकल कॉन्शियसनेस पैदा ना होने पाए। नंबर 2, बगावत नहीं होने देनी है, हम बाहर के लोग हैं, हम इन पर काबिज हैं, हम हुक्मरान हैं, बगावत नहीं होने देनी है। नंबर 3, सिक्योरिटी के मामलात को कंट्रोल करना है। तो हमारी जितनी यूनिवर्सिटीज हैं पूरे पाकिस्तान में, ये कॉलोनियल लेगेसी रखती हैं। कॉलोनियल लेगेसी से मुराद जो ब्रिटिश का कायम करदा तालीमी, सियासी, समाजी, माशी निज़ाम है, हम उस निज़ाम को साथ लेके चल रहे हैं। ये हमारा विरसा है, हमारी लेगेसी है। फिर उसके बाद हमारे हिस्से में यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब आई, ब्रिटिश ने बनाई है। तो पाकिस्तान, अच्छा, जब ब्रिटिश ने यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा बनाई, तो उसका जो चांसलर था, गवर्नर जनरल को रखा गया। आज पूरे पाकिस्तान में तमाम फेडरल यूनिवर्सिटीज के चांसलर प्रेसिडेंट साहब हैं, और प्रोविंशियल यूनिवर्सिटीज के चांसलर गवर्नर साहब है। हुकूमती कंट्रोल क्यों? ताकि क्रिटिकल कॉन्शियसनेस सामने ना आए, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप ना हो। एकेडमिक फ्रीडम पर पाबंदियां हैं, फ्री स्पीच पर पाबंदियां हैं। वैसे तो हम कहते हैं हम आजाद है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, लेकिन हमारी खुद जो यूनिवर्सिटीज का सिस्टम है, ये इटसेल्फ कॉलोनियल है, और हम उस कॉलोनियल लेगेसी को लेके चल रहे हैं। तो चेंज कुछ नहीं हुआ। होना तो ये चाहिए था कि आजादी के बाद, या पार्टीशन के बाद, या कंटिन्यूएशन ऑफ कॉलोनियल सिस्टम के बाद, कोई भी आप नाम इसको दे दे, हम एक फ्री और इंडिपेंडेंट टाइप पर अपने एजुकेशनल सिस्टम को डेवलप करते। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। हमने वही चीजें रखी जो कि ब्रिटिश ने अपने लिए रखी थी, कि क्रिटिकल कॉन्शियसनेस ना आए, बगावत ना हो, सिक्योरिटी के इश्यूज को डील किया जाए, और वही माइंडसेट लेकर हमारी गवर्नमेंट भी चली। और जैसे कि मैंने 2 नाम लिए, आर्चीबाल्ड रोलेंट इकोनॉमिक एडवाइजर, केएस जेफरीज, एक और नाम मैं भूल रहा हूं,
उनको बनाया गया था फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ पाकिस्तान, टर्नर, चार्ल्स टर्नर, सर अल्फ्रेड चार्ल्स टर्नर, फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ पाकिस्तान। और फिर लोग कहते हैं कि जी जिन्ना साहब जिंदा रहते तो बहुत कुछ हो जाता। ये जिन्ना साहब नहीं किए, किसी और ने नहीं किए। इन तीनों की अपॉइंटमेंट एज गवर्नर जनरल जिन्ना साहब ने की है। तो फिर ये आपको ना एक और रास्ते पे चलाते हैं। रास्ता ये है, आपको कहते हैं यहां जाइए, रास्ता पीछे आपको कहते हैं यूं जाइए। ये कभी सही डायरेक्शन पर आपको लेके नहीं जाएंगे, क्योंकि जो पेडागोजी है ऑप्रेस्ड की, यानी कि मजलूमों की, वो यही है, वो यही है। और इसमें ऐसे बताया जाता है कि जो सच है ना, वो सिर्फ उस्ताद के पास होता है, और उस्ताद उस सच को निचावर करता है, क्योंकि उस्ताद एक आलिम है, और जो आप लोग हैं, आप लोग जाहिल हैं। आप लोग क्या है? जाहिल है। तो एक तोहफे की तरह इस सच को बांटा जाता है, निचावर किया जाता है कि भाई आप लोगों का काम है कि सिर्फ उसको सुनना, और हम जैसे आलिमों का काम है बताना। डायलॉग नहीं है। फ्रेरे कहता है कि एक ही टाइम पर एक उस्ताद स्टूडेंट भी होता है और एक स्टूडेंट उस्ताद भी होता है। सीखने और सिखाने का अमल बायलेटरल है, वन वे नहीं। तो एक उस्ताद को स्टूडेंट भी बनना चाहिए और एक स्टूडेंट को उस्ताद भी बनना चाहिए, और डायलॉग के जरिए सीखना चाहिए, चीजों को आगे लेके चलना चाहिए कि ये चीजें किस तरह से आगे बढ़ती हैं। इसमें सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि आप एक बहुत ही बेजान से अंदाज में एक बेकार सा लेक्चर दे रहे हैं, आपका जो वजूद है उसको रिलेट ही नहीं कर रहा, इसीलिए हम बहुत सारी चीजें नहीं समझते। फिर हमारी जो एजुकेशन है ये डॉगमेटिक है, अकीदा परस्ताना है। हम सब्जेक्टिव अप्रोच रखते हैं चीजों के मामले पर। पढ़े लिखे लोग भी, पीएचडी प्रोफेसर, पढ़े लिखे लोग भी, देखें, रैशनल होने के लिए, साइंटिफिक होने के लिए आपका पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है। अगर एक अंगूठा छाप भी ये समझता है कि मेरी बाइक इसलिए खराब हुई है कि इंजन में कोई फॉल्ट है, तो दिस इज साइंटिफिक अप्रोच। लेकिन अगर एक पीएचडी प्रोफेसर समझता है कि यार ये खराब इसलिए हुई है कि नजर बद लग गई है, कोई कोई हसद कर रहा है मुझसे, तो ये अनसाइंटिफिक अप्रोच है। हमारी साइंस भी इंतहाई अनसाइंटिफिक है। जो टीचर्स खड़े होकर पढ़ा रहा होता है ना, वो मजहबी हवालों से साइंस को पढ़ा रहा होता है। मुसीबत ये है कि हमने साइंस को भी इस्लामाइज्ड किया हुआ है यहाँ पर। ये दुनिया की कायनात की चीजें हैं, ये किसी एक मखसूस मजहब, किसी एक मखसूस कम्युनिटी के अजारे पर नहीं है। ये कायनाती चीजें, यूनिवर्सल फैक्ट्स हैं ये। लेकिन हम उसको घुमा फिरा के इस तरह करते हैं कि कोई अच्छा साइंसदान पैदा ही ना हो, क्योंकि साइंस में भी हम अकीदे को ले आते हैं, हम उसको डॉगमेटिक कर देते हैं, हम उसको ऑब्जेक्टिव नहीं बनाते, सब्जेक्टिव बनाते हैं। सब्जेक्टिव अप्रोच क्या है? कोई भी वो ख्याल जो आपके जहन में आता है, कोई भी वो जज्बा, वो तासुबात, वो ख्वाहिशात, वो आपकी कोई भी ऐसी चीज, भाई फॉर एग्जाम्पल हम कहें कि इस क्लास में जो है ये माइक है, आप सब कहेंगे ये माइक ही है, ये ऑब्जेक्टिव अप्रोच है। लेकिन एक शख्स कहेगा कि यार ये माइक तो है, लेकिन ना इस पर जो भी बात करेगा वो कुछ और हो जाएगा, कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी। ये सब्जेक्टिव अप्रोच है, अनसाइंटिफिक। क्यों? जो चीज प्रूफ नहीं है ना, जो चीज साबित शुदा नहीं है, उस पर हमारे जज्बात, तसव्वुरात, ख्यालात। और देखिए, आपको लगता है कि एजुकेशन सिर्फ आपको यूनिवर्सिटीज देती हैं, स्कूल देते हैं या कॉलेजेस देते हैं, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे, पुलिस, जुडिशरी, आपका घर, ये सब तालीमी इदारे हैं। ये सब आपको एजुकेट करते हैं, ये सब आपका वर्ल्ड व्यू बनाते हैं, ये सब आपकी कंडीशनिंग करते हैं, और फिर आप उसी कंडीशनिंग के तहत सामने आते हैं। सिर्फ आप क्लास में नहीं पढ़ते हैं। ये जितनी सोसाइटी के इदारे हैं, थाने में जाएंगे तो ताकतवर आदमी की कॉल चाहिए, किसी का रेफरेंस चाहिए, अटेस्ट करवाना हो, कुछ कैरेक्टर सर्टिफिकेट, किसी को बड़े को पकड़ो। जुडिशरी में भी यही है, ताकतवर के लिए जुडिशरी चल के जा रही है। आप एजुकेट हो रहे हैं, आपको ये बताया जाता है कि देखिए ताकतवर के पास ही सब कुछ है, जो ऑपरेसर्स है उसी के पास ही सब कुछ है, आपके पास नहीं है। अब थोड़ा सा हम सिंगल नेशनल करिकुलम पर बात कर ले। यास्मीन साहिबा ने मेरी बड़ी नॉलेज में इजाफा किया। जब मैं यहाँ आने से पहले हम डिस्कस कर रहे थे सिंगल नेशनल करिकुलम को। सिंगल नेशनल करिकुलम हमें लग रहा है कि डॉक्टर मरियम चुगताई और हमारी जो फेडरल एजुकेशन मिनिस्ट्री है, इनकी पॉलिसी है। हमें फिर ऐसे लगता है, ऐसा नहीं है, ये अगेन किसी और की पॉलिसी है, हम उसके इम्प्लीमेंटर हैं। एचएससी वर्ल्ड बैंक ने बनाई। एडी प्रोग्राम का नाम सुना है आप लोगों ने? एडी प्रोग्राम, एडीपी, एडी प्रोग्राम, एसोसिएट डिप्लोमा।
ये भी वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट है, उसका नंबर भी है, लेकिन HSC कहती है ये हमारा प्रोजेक्ट है। और यहाँ के जो पॉलिसी मेकर्स सो कॉल्ड, तो वो आपको ये नहीं बताएंगे कि हमें कितने डॉलर्स मिले, हमारी कितनी फंडिंग हुई है इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने की। भाई पॉलिसीज तो आप लोकल जरूरियात को मद्देनजर रखते हुए बनाते हैं, ना कि किसी गैर मुल्की IMF और वर्ल्ड बैंक के मामलात को लेते हुए। आपकी जरूरत क्या है, आपके बच्चों को किस तरह से चलना है। अगर हम कल से पाकिस्तान में ये कानून नाफिज कर दें कि जिसको पुलिस और फौज में जाना है उसकी हाइट 12 फीट होनी चाहिए, तो क्या होगा? कोई मिलेगा 12 फीट वाला? हमें अपना देखना है ना, एवरेज हाइट निकाल के फिर हम एक पॉलिसी बनाएंगे। तो हम इंप्लीमेंट करते हैं उन पॉलिसीज को बगैर सोचे समझे कि ये हमारी सोसाइटी के लिए बेहतर है, कारआमद है या नहीं है। तो इसीलिए मुझे तो यही लग रहा है कि ये डिक्लाइन ऑफ एजुकेशन है। बहरहाल मैं बात कर रहा था सिंगल नेशनल करिकुलम की। सिंगल नेशनल करिकुलम आया जी, अब उसमें एक सिंगल आइडेंटिटी को प्रमोट किया गया। पाकिस्तान में मुस्लिम्स के अलावा भी तो लोग रहते हैं ना, क्रिश्चियंस रहते हैं, सिख रहते हैं, बहाई रहते हैं, हिंदूज रहते हैं, सनातन धर्म के लोग रहते हैं, लेकिन उनकी सिंगल नेशनल करिकुलम में कोई नुमाइंदगी नहीं थी। और उसमें लड़कियों को ऐसे दिखाया गया था जैसे वो स्कार्फ पहन के, एक मखसूस स्कार्फ जो एक मखसूस कम्युनिटी पहनती है, हर मुस्लिम कम्युनिटी भी स्कार्फ नहीं पहनती, एक मखसूस कम्युनिटी के स्कार्फ को दिखा के उसे किचन में खड़ा कर दिया गया। एजुकेट करना कि लड़की का काम तो किचन में और पर्दा है। अच्छा भाई, मैं जैसे डिस्कस कर रहा था कि लड़की तो पायलट भी बन सकती है ना, लड़की डॉक्टर भी बन सकती है या कोई और काम भी कर सकती है जो उसको करना हो, लेकिन नहीं। पर सिंगल आइडेंटिटी ये है कि आप उसको एक मुस्लिम एजुकेशन के तौर पर पेश करते हैं। देखिए, एजुकेशन को लिबरल होना चाहिए, सेकुलर होना चाहिए। हर इंसान को हक है कि वो अपनी मजहबी तालीम हासिल करे, उसके लिए अलग से रिलीजियस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स होने चाहिए। क्लास में, यूनिवर्सिटी में एजुकेशन को सेकुलर होना चाहिए सबके लिए, और रियल एजुकेशन होनी चाहिए, न कि आप डॉगमास पढ़ाएं, आप एजुकेशन के नाम पर अकायद पढ़ाएं। वो तो पढ़ लेगा अपने इदारे में जाके, इदारे तो हैं, बच्चे जाते हैं, बच्चों को जाना भी चाहिए, उनका हक है कि वो अपने मजहब की तालीमात हासिल करें, लेकिन नॉट इन यूनिवर्सिटीज। दुनिया डेटा साइंसेस की तरफ जा रही है, दुनिया रोबोटिक्स की तरफ जा रही है, दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ जा रही है। हमारी HSC अभी रिसेंटली इसी साल 2023 में एक कानून लेके आई है कि BS लेवल पर टीचिंग ऑफ होली कुरान को लाजमी कर दिया जाए। दुनिया डेटा साइंसेस की तरफ जा रही है। आप देखिए MIT, ऑक्सफर्ड, कैम्ब्रिज और इन सब इदारों को, और पाकिस्तान की HSC क्या फैसला करती है? टीचिंग ऑफ होली कुरान एट BS लेवल। भाई बच्चा ऑलरेडी कुरान पढ़ के ही आता है, जिसको पढ़ना होता है, अगर वो मुस्लिम है पढ़ के आएगा। अच्छा भाई, हिंदू बच्चा क्लास में क्या करेगा और क्रिश्चियन क्या करेगा? उनको बाहर निकाल देंगे। डिस्क्रिमिनेट करते हैं आप डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, आप उनको लेबल करते हैं कि देखो ये हमारे जैसे नहीं है। 9th क्लास से हम अपनी सोसाइटी को डिवाइड करते हैं सुन्नी इस्लाम और शिया इस्लाम के नाम पर। 9th क्लास में जब इस्लामियात पढ़ाई जाती है, और फिर MA तक, BS 4 ईयर तक अलग अलग टीचर हम अपॉइंट करते हैं ना। हमारी यूनिवर्सिटीज में, पूरे पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज में 2 टीचर्स अपॉइंट होते हैं इस्लामियात में। आप तकसीम कर रहे हैं। आप बुनियादी चीजें पढ़ाइए इस्लाम की, आप तकसीम मत करें लोगों को। आप 9 से एक बच्चा अलग होता है, अच्छा ये मुझसे डिफरेंट है, ये मेरी इस्लामियात नहीं पढ़ रहा, वो समझता है कि ये मुझसे डिफरेंट है। तो फिर डाइवर्सिटी, इंक्लूजन और एक जो तकसीरी समाज जिसको हम कहते हैं प्लूरल सोसाइटी, ये कैसे बनेगी? इसीलिए आप लोग जब बड़े होते हैं तो वो तासुबात, वो ख्यालात, वो प्रेजुडिसेस आपके साथ होते हैं, कम्युनिटी के नाम पर, मजहब के नाम पर, फिरके के नाम पर, और इन सब डिविजन्स को तालीमी इदारों में शार्प भी किया जाता है। ऑप्रेस्ड के लिए ये लाजमी है कि वो तकसीम हो। अगर आप में जुड़त होगी तो ये जुड़त ऑप्रेसर्स के लिए प्रॉब्लम पैदा करेगी, क्योंकि वो जिस निजाम को कायम रखना चाहता है थ्रू एजुकेशनल सिस्टम, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और टीचर्स, ये उस निजाम के लिए फिर खतरनाक है कि आप में जुड़त पैदा हो। मसाइल सबके हैं, लेकिन हर बरादरी अलग अलग है, इश्यूज सबके हैं। इस वक्त पूरे पाकिस्तान में सिर्फ 1% लोग यूनिवर्सिटी एजुकेशन हासिल कर रहे हैं। आप खुश नसीब हैं कि AKU का हिस्सा है, यानी कि आप 1% में शामिल है। 1% ऑफ पॉपुलेशन, यू आर अमंग देम। 99% ऑफ पॉपुलेशन यूनिवर्सिटी की शक्ल नहीं देखती,
कहाँ है ये फेडेफ, कहाँ है ये कॉमनवेल्थ का इदारा, ये सारे इनकी इकोनॉमिक प्लानिंग और इनकी एजुकेशनल प्लानिंग और ये HSC और ये सब चीजें। आपका बच्चा तो यूनिवर्सिटी में नहीं है, फिर किसके लिए पॉलिसियां बनती हैं? 5% बच्चे भी नहीं है, 2% भी नहीं है, एक 1% है, 1% के लिए इतना बड़ा सिस्टम, तो मामला तो गड़बड़ है, मामला तो फिर कुछ और है। आप लोगों को फिक्री तौर पर अपना गुलाम अभी तक बना के रखना चाहते हैं। स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट, जो ये कहते हैं ना कि स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट एक सॉफ्ट पावर होती है कि आपकी हमदर्दियां बगैर आपको बताए ले ली जाती हैं, आपको एहसास भी नहीं होता। ऐसे ऐसे खूबसूरत प्रोजेक्ट से लाते हैं, पीसी में, शेरेटन में, मूव एंड पिक में, जबरदस्त किस्म की वो मल्टीमीडिया और वो स्क्रॉल डाउन और खूबसूरत उनकी प्रेजेंटेशन, अंदर से सब खोखला, सब खाली, सब बेढंगा। हाल ये कि 1% एजुकेटेड लोग हैं यूनिवर्सिटीज में, और वो जो 1% है वो डॉगमेटिक भी है, वो स्टेट सेंट्रिक भी है, वो रैशनल भी नहीं है, उनकी अप्रोच ऑब्जेक्टिव भी नहीं है, सब्जेक्टिव है। मतलब उस 1% में भी कौन सी क्वालिटी हमारे पास है जो सवाल नहीं कर सकती, जो क्रिटिकल कॉन्शियसनेस के तहत किसी चीज को एनालाइज नहीं कर सकती, डिग्री ले लेती है। तो 1% पॉपुलेशन जो डिग्री होल्डर है यूनिवर्सिटीज की, उसमें भी प्रॉब्लम्स हैं, क्वालिटी नहीं है। जैसे कि मैं कहूँ पाकिस्तान की जी आबादी 20 करोड़ है और जी अच्छी आबादी है बड़ी, बाबा इस 20 करोड़ में चोर कितने, डाकू कितने, भिखारी कितने, अंधे लंगड़े लूले ड्रग एडिक्ट्स कितने, और पढ़े लिखे कितने? फिर अगर वो क्रक्स आप निकाले तो पता चलेगा कि जी वो 1 करोड़ ही कुछ बेहतर हो तो हो, बाकी तो 19 का तो कोई फायदा ही नहीं है। नहीं, स्ट्रीट क्राइम्स में है, एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। तो ये चीजों को इस तरह से पेश करते हैं कि ये लोकल पॉलिसीज हैं, ये वर्ल्ड बैंक की पॉलिसीज हैं। मैंने आपको पहले 5 साला मंसूबे का भी रेफरेंस दे दिया, आप गूगल पर चेक करें, सारी डॉक्यूमेंटेशन मौजूद है। HSC 2002 में बनी है, उसको आप चेक करें। और फिर जो ये सेटअप आया है ना कॉलोनियल हमारे पास एजुकेशन का, इससे मजीद हमारे लोगों ने और ताकतवर किया है। हमने सियासत के नाम पर एक इंतहाई जाबदार निजाम, हमने पसमानदगी के नाम पर जागीरदारी निजाम को, हमने एजुकेशन के नाम पर एक ऐसे निजाम को जिसमें आप नफ्सियाती तौर पर, साइकोलॉजिकली आप अपने आप को ना इंफेरियर फील करें, आप एक मगलूब जहनियत, यानी कि एक डोमिनेटेड, कि भाई कोई है डोमिनेटेड आप पर, इस तरह की मेंटेलिटी हमने क्रिएट की है। और जितने भी टीचर्स हैं जो इस निजाम का हिस्सा है, आप यकीन कीजिए कि सियासी तौर पर, समाजी तौर पर, इखलाकी तौर पर, नफ्सियाती तौर पर इस निजाम को चैलेंज करने की सिक्कत ही नहीं रखते। वो इस निजाम पर उंगली उठाने की या बात करने की अहलियत ही नहीं रखते, क्योंकि उन्हें जिस तरह से जकड़ा गया है, एक लेगेसी चली आ रही है कि जी बात नहीं करनी है, बोलना नहीं है, पाबंदियां हैं, ये डिसिप्लिन, ये कोड ऑफ एथिक्स, ये फिलहाल ये चीजें, तो ये सब चीजें लाई गई हैं। आप मुझे बताएं कि आप में से कितने लोग मदन लाल डींगरा को जानते हैं? कोई नहीं जानेगा उसे। एक गुजराती खातून का नाम ले रहा हूँ, बीकाजी कामा, बीकाजी रुस्तम कामा, पारसी खातून थी, गुजराती। कोई जानता है उसका नाम? कि वो कितनी बड़ी रेवोल्यूशनरी खातून थी अंग्रेजों के खिलाफ? कोई नहीं नाम जानता उसका। तो ये वो हम अपनी धरती के लोगों को नहीं जानते। सूर्या सेन को कोई जानता है? चिटागोंग आर्मरी, सूर्या सेन मास्टर, एक प्राइमरी टीचर थे, ब्रिटिश कॉलोनियल सिस्टम के खिलाफ थे। ये नहीं पढ़ाए जाते हैं क्योंकि आप जिनसे फंड्स ले रहे हैं ना, वो मना करते हैं। आपको पता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी 16वीं सदी में आई, 1857 तक इनकी हुक्मरानी रही, उसके बाद हम डायरेक्ट ब्रिटिश रूल में आ गए, क्वीन या किंग जो भी उस वक्त होगा। कितनी लूटमार हुई है, कितनी लूटमार हुई है, आइडिया है? कोई आइडिया? 1938 तक ब्रिटिश ने कितनी लूटमार की है? $45 ट्रिलियन। 45 मिलियन नहीं, ट्रिलियन डॉलर्स। ये पता नहीं कितने सैकड़ों अरब रुपए बनते हैं। आप कन्वर्ट कीजिएगा इसको कभी, 45 ट्रिलियन डॉलर्स। कोई लिखता है इस पर? 2019 में प्रिंस विलियम और कैट मिडल्टन आई पाकिस्तान। मैंने फेसबुक पर एक पोस्ट डाली, आप लोग मेरा फेसबुक पेज देख सकते हैं असगर दश्ती के नाम से। मैंने एक पोस्ट डाली, मैंने कहा 45 ट्रिलियन डॉलर्स चोरी करने वाले शाही खानदान के अफराद को खुशामदीद। चोर हैं ये पूरा सोना, ये सारी चीजें, ये सब आपको कोहिनूर का पता है?
कोहिनूर चुरा लिया, हमारा छोटा सा कोहिनूर, $45 ट्रिलियन के चोर हैं ये, बर्बाद कर दिया। बर्तानिया की तरक्की हिंदुस्तान की बर्बादी की बुनियाद है। बर्तानिया ने आज जो तरक्की की है वो हिंदुस्तान को लूट कर की है। $45 ट्रिलियन इन्होंने चुराए, लूटे। ये बातें हमें नहीं बताई जाती हैं, ये सिलेबस में नहीं आती हैं। शेयर्ड हिस्ट्री भी तो है ना हमारी, उसे पढ़ाया जाए, उसे बताया जाए कि इन्होंने क्या क्या किया। एम्प्रेस मार्केट किस किसने देखी है सदर में? सादिया ने तो देखी होगी। ये एम्प्रेस मार्केट, एम्पिरर, शहनशाह, एम्प्रेस उसकी वाइफ, उसके नाम पर बनी है एम्प्रेस। इस एम्प्रेस मार्केट की जगह पर जब ये एम्प्रेस मार्केट नहीं था, म्यूटिनी 1857, बगावत, सुना होगा ना, पढ़ा होगा, कराची में भी हुई थी। कराची के 3 सिपाही, रामदीन पांडे, अल्लादाद और एक नाम मेरे जहन से मिस हो रहा है, इनको लाकर यहां पर तोपों से बांधकर उड़ाया गया। जितने लोग कराची में बगावत करते थे, बार्टल फेरियर का दौर था ये, इनको इस जगह पर लाकर तोप से बांधकर उड़ाते थे। जब लोग शमय रखने आते थे, विजिल करने आते थे, फूल रखने आते थे, अंग्रेजों को एहसास हुआ कि ऐसा ना हो ये कोई अगेन एक सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस बन जाए, तो एम्प्रेस मार्केट तामीर कर दो। क्या हिस्ट्री में ये पढ़ाया जाता है? पाकिस्तान, मुताला पाकिस्तान में ये बात पढ़ाई जाती है, तारीख पाकिस्तान में ये बात पढ़ाई जाती है कि कराची में क्या होता रहा है, किस तरह लोगों को तोप से बांधकर इसी एम्प्रेस मार्केट सदर में उड़ाया जाता रहा। तो ये सब चीजें एजुकेशन से गायब हैं, लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि हम बहुत एजुकेटेड हैं। हमें कुछ नहीं पता, कुछ भी नहीं पता, कोई चीज के बारे में हम नहीं जानते, क्योंकि हमारी एजुकेशन बहुत एब्स्ट्रैक्ट है, बहुत मैकेनिकल है। रट्टा लगाएं, पेपर करें, असाइनमेंट बनाएं, जान छुड़ाएं, डिग्री ले और निकलें। कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करें, मल्टीमीडिया के प्रेजेंटेशन देखें, एब्स्ट्रैक्ट। आपको बोरियत नहीं होती उसको देखते हुए? होती होगी, क्योंकि आपका जो एग्जिस्टेंशियल एक्सपीरियंस है उससे रिलेट ही नहीं कर रहा। ठीक है, बैठे हुए हैं, असाइनमेंट है, देखना है, बच्चे लेक्चर दो, सुनते हैं, समझ में नहीं भी आ रहा, क्या करें? सुनते हैं, क्योंकि वो बैकग्राउंड नहीं है, वो बैकग्राउंड ही नहीं है जिससे आप एडवांस नॉलेज को समझ सके। तो बहरहाल अब एचएससी ने ये करार दे दिया है कि तालीम अब कोई मुकद्दस शय नहीं है, अब ये एक ग्लोबल नॉलेज इकोनॉमी है। नॉलेज इकोनॉमी, खरीदा जाए, बेचा जाए, आप इसको खरीदेंगे एज कस्टमर, एज कंज्यूमर। ये अब नई पॉलिसी सामने आ रही है कि इसको कारपोरेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन करार दिया जा रहा है, जिसको मैं समझता हूँ इसको मार्केटाइजेशन ऑफ एजुकेशन बोल दें आप लोग, या आप इसको कमर्शियलाइजेशन ऑफ एजुकेशन कह दे, कि जिसमें मैं टीचर नहीं हूं, आई एम नॉलेज वर्कर। कितना अच्छा लफ्ज, नॉलेज वर्कर। अच्छा, सूट करता है लोगों को। हमारे लोग चूंकि वो एब्स्ट्रैक्ट हैं, नॉलेज वर्कर, रे क्या टर्मिनोलॉजी है अंग्रेजी की, नॉलेज वर्कर, खुश होते हैं ना, मतलब नॉलेज वर्कर। और आप क्या है? वर्क फोर्स। नॉलेज नॉट स्टूडेंट, ना ना ना, नॉलेज वर्क फोर्स। हम और आप उस ग्लोबल नॉलेज इकोनॉमी का हिस्सा है, जो कि अगेन $1 मिलियन इंडस्ट्री है, $1 मिलियन इंडस्ट्री है। ये हायर एजुकेशन कमीशन 2002 में ऐसे ही नहीं बना है, ये गेट का मुआहदा है, गेट, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, लिख लीजिए, GATT। आजकल इसका नाम है गेट्स, ट्रेड एंड सर्विसेज कर दिया इसको, जिसमें दुनिया के सैकड़ों ममालिक शामिल है। वहां ये साइन हुआ है कि हम एजुकेशन को लिबरलाइज करेंगे, मार्केटाइज करेंगे, कारपोरेटाइज करेंगे। ये आपका BS प्रोग्राम ऐसे ही नहीं आया है, ये जितनी तब्दीलियां आ रही हैं, हम सिर्फ एडजस्टमेंट पॉलिसी चला रहे हैं उन इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ जो कि ग्लोबल एजुकेशनल इन्वेस्टर्स हैं। वो कहते हैं कि नहीं, ये चीज नहीं बिकेगी, इसको हमारे मुताबिक लाओ, इसका स्टैंडर्ड ऊपर करो, ये चीज नहीं बिकेगी आपकी, आपको सेमेस्टर सिस्टम करना है, आपको 2 से 4 ईयर करना है। हम तय नहीं करते हैं, ये वो हमसे करवाते हैं। हम सिर्फ इसको आपके सामने एक्सपर्ट होके पेश करते हैं, टाई कोट लगा के एयर कंडीशन कमरों में। ये पॉलिसीज तो कहीं और से आ रही है, इसके फैसले तो कोई और कर रहा है। हमारे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स, हमारे बड़े बड़े इदारे, हमारी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज शुरू हो जाती हैं कि इसको लोकलाइज, इंडिजिनाइज कैसे किया जाए, और ताकि एक ट्रेड है ना बराबर हो, ट्रेड एजुकेशनल का बराबर हो। तो ये पूरा ट्रेड है, तो फिर एजुकेशन कहाँ गई?
तालीम क्या है? क्या है? व्हाट इज एजुकेशन? क्या है तालीम? कोई जवाब है? जवाब तो फिर कोई नहीं हुआ। तालीम, तहजीब, तकद्दुस और जी ये उस्ताद शागिर्द तो सब बकवास हो गया ना फिर तो। ये तो गेट तय कर रहा है। एचएससी बनाई गई, लम्स का नाम सुना है आप लोगों ने ना? उसके जो मालिक हैं सैयद बाबर अली, ये उसमें शामिल थे। बोस्टन ग्रुप उसमें शामिल था। जनरल मुशर्रफ का बेटा बिलाल मुशर्रफ शामिल था। इन्हें उस वक्त पर डे वर्ल्ड बैंक पेमेंट करती थी कोई $500 पर पर्सन, इस तरह से बोस्टन ग्रुप। अच्छा, एचएससी अपना पूरा स्ट्रक्चर ले आए जी, हमने ले आया पूरे का पूरा अमेरिकन प्रोफेसर डेविड ब्लूम का चरवा, पूरा चुराया हुआ। इनमें इतना दिमाग भी नहीं है कि खुद से कोई चीज इन्वेंट कर सके। सीढ़ी नहीं है, छत पर जाएंगे कैसे? सीढ़ी माने एजुकेशन, वो नहीं है तो आइडिया कहां से आएगा? एजुकेशन तो है ही नहीं, आइडिया तो आ नहीं सकता, तो चुराओ, अमेरिका से चुराओ। एक चीज है, आप रिसर्च अगर करते हैं, टर्निटिन, किस किसने सुना है? यास्मीन साहब पानी अगर मिल जाए कुछ। टर्निटिन का किस किसने सुना है? जितने रिसर्चर्स हैं सुना है? टर्निटिन एक सॉफ्टवेयर है। जितने एजुकेशन अभी आप रिसर्च करेंगे आगे, आपको टर्निटिन से अपने आप को गुजारना होता है, अपनी रिसर्च को। ये आई पैराडाइम कंपनी की मिल्कियत है। टर्निटिन एक अमेरिकन सॉफ्टवेयर है। 1998 में टर्निटिन को डेवलप किया गया, आज 2023 है। अब तक टर्निटिन में 50 लाख थीसिस, रिसर्च पेपर्स भेजे जा चुके हैं। अमेरिका पूरी दुनिया की रिसर्च पर नजरें रख रहा है। ये रिसर्च अमेरिकन सीआईए के हाथ में भी है, ये रिसर्च उनके जो एफबीआई के हाथ में भी है, क्योंकि ये अमेरिकन प्रॉपर्टी है। दुनिया भर में टीचर्स क्या लिख रहे हैं, स्टूडेंट्स क्या लिख रहे हैं, वो सारा डायरेक्ट टर्निटिन के जरिए अमेरिका पहुंच रहा है। और 753 मिलियन डॉलर आई पैराडाइम का प्रॉफिट है, इनकम है। और ये वो चीजें हमें जो हम बेच रहे हैं रिसर्च के नाम पर। हमारी एचएससी ने अब तक 1 अरब पता नहीं कितने करोड़ टर्निटिन को पे किए हैं, जो सिमिलरिटी इंडेक्स को चेक करता है। यानी कि हम अपनी रिसर्च भी देते हैं, हम उसके पैसे भी दे रहे हैं। और हमारी यूनिवर्सिटीज बड़े खुश हैं, सिमिलरिटी इंडेक्स चेक कराओ, टर्निटिन से गुजार के लाओ, 19% बिलो द 19। वो सब अमेरिका के पास है, सब दुनिया भर में 50 लाख थीसिस अमेरिका के पास है। आई पैराडाइम कंपनी है उसकी, उसका करोड़ों डॉलर्स में उसका मुनाफा है। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा। एचएससी पैसे देती है टर्निटिन को, क्योंकि हमारे पास तो एक्सेस फ्री है। आप लोगों ने खरीदा होगा, प्राइवेट इदारा है, हमारी पेमेंट एचएससी कर रही है, प्राइवेट वाले अपनी पेमेंट खुद करते हैं सॉफ्टवेयर को। यानी कि दुनिया भर में आप सोच क्या रहे हैं, आपके दिमाग, आपका रिसर्च, आपके आइडियाज अमेरिका के पास है। इस पर हम सवाल नहीं करते। इस पर कोई क्वेश्चन नहीं है कि टर्निटिन क्या है। और टर्निटिन को तो समझा जाता है कि भाई बड़ा बेहतरीन आलिम इसी से बनता है, स्कॉलर इसी से बनेगा। मैं पानी पी लूं जरा। मेरा ख्याल है कि अगर अब आप लोग सवाल करना चाहें, यास्मीन साहब हम क्वेश्चन सेशन ओपन कर दें। ये सवाल अब करने ही वाले हैं ना, इनको मैंने बहुत बोर कर लिया। जी जी, हम सेशन ओपन करते हैं, ओपन है। जी जी, कीजिए सवाल। थैंक यू। मेरा क्वेश्चन ये है कि फॉर एग्जांपल हम जो है कॉलोनाइज्ड है, ठीक है, वी आर कॉलोनाइज्ड पीपल, और कॉलोनाइज्ड पीपल को जो है पॉलिटिकल क्रिएचर्स कहा, मतलब सिन ने शायद ये लफ्ज़ यूज़ किया है, पॉलिटिकल क्रिएचर्स। सो वी हैव नो कॉन्शियसनेस, वी हैव डेवलप कॉन्शियसनेस, हमारा कोई फ्री कॉन्शियस नहीं है। लेट सपोज हम इस क्वेश्चन को रिवर्स करके बैक पे चले जाते हैं कि लेट सपोज ब्रिटिश नहीं आती है सब कॉन्टिनेंट,
हम कॉलोनाइज भी नहीं होते हैं, तो उससे पहले हमारी हिस्ट्री क्या है? क्या वहाँ पे हमारी कोई ऐसी डेवलप्ड कोई स्ट्रक्चर था? क्या ब्रिटिश ने आके हमारी कोई ऐसी यूनिवर्सिटी को यहाँ तहस नहस किया? क्या हमारी किसी लाइब्रेरी को, किसी रिसर्च सेंटर को? सो व्हाट वी हैड बिफोर द ब्रिटिश? ठीक है, मैं समझ गया आपका सवाल। लॉर्ड मैकाले ने जब और हिंदुस्तान सर, की मेरा क्वेश्चन लास्ट में ये है ओके कि ओके अगर ब्रिटिश नहीं आती तो हम किस तरह के लोग हाँ होते? बिल्कुल, क्या मैं हम समझ गया, रिसर्चर्स होते? मैं समझ गया। हर ऑपरेसर अपना लेजिटिमेट खुद को करने के लिए, अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए ये सब बातें करते हैं। लॉर्ड मैकाले जब यहाँ आए और जब इन्होंने सोचा कि यहाँ पे एजुकेशनल रिफॉर्म्स की जाएं, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं था। यहाँ पर एक बहुत मुनज़्ज़म ऑर्गेनाइज्ड एजुकेशनल सिस्टम था, पाठशालाओं की शक्ल में या दीगर जो भी, चूंकि मुख्तलिफ कम्युनिटी थी और हिंदू कम्युनिटी सबसे बड़ी थी, तो ऐसा नहीं है कि कोई एजुकेशन नहीं था। बर्तानिया वालों ने आकर इस सब कॉन्टिनेंट का जो भी फैब्रिक था, उनका अपना जो स्ट्रक्चर था, उसे बर्बाद कर दिया और कहा यह कि आप लोग गंवार हैं, आप लोग जाहिल हैं, आप लोग बदतहजीब हैं, हम आपको तहजीब सिखाने आए हैं। हर कॉलोनियल पावर यही बात करता है। फ्रांस, अल्जेरिया में फ्रेंच यही बात करते थे, हिंदुस्तान में ये ब्रिटिशर यही बात करते थे कि हम तो आपको तहजीब सिखाने आते हैं। आपके पास ये किसने तय किया कि हमारे पास कुछ नहीं था? उन्हीं ब्रिटिशर्स ने, जिसको आप अभी बयान जो कर रहे हैं, ये आपकी सोच नहीं है, ये आपकी थिंकिंग नहीं है, ये उन्होंने सबसे पहले, देखिए, किसी पर कब्जा करने के लिए, किसी को मारने के लिए, किसी को कत्ल करने के लिए जवाब तराशे जाते हैं कि तुमने ये कहा था इसीलिए मैंने ये किया। आपके पास कुछ नहीं था, यही गलत है। इसी को तो क्वेश्चन होना है, इसी को रेजिस्ट करना है और यही रिसर्च सामने लानी है कि था, है। आप पढ़िएगा इनग्लोरियस स्टेट, इनग्लोरियस एम्पायर, सॉरी, शशि थरूर की पढ़िएगा बुक, वो आपको बताएगा कि क्या था यहाँ पर। उसने जाके ऑक्सफोर्ड में ये तकरीर की है कि ये आप लोग बकवास करते हैं हमारे मुतालिक, कि हम जाहिल थे, हम इस तरह के थे। उसने फैक्ट्स एंड फिगर दिए, आप स्टडी कर लें। इसी को क्वेश्चन करना है, इसी माइंडसेट को कि हम जाहिल नहीं थे और आपने आकर हमें जी तहजीब याफ्ता बना दिया। आपने कौन सा, आपको तो सस्ते पढ़े लिखे मजदूर चाहिए थे अपनी कंपनी के लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। आपको तो पढ़े लिखे लोगों की जरूरत थी। दुनिया की पहली जो यूनिवर्सिटी बनी है ना, वो भी सरमायादारों ने बनाई है। उनको पढ़े लिखे लोग चाहिए थे, इटली में ब्लोगना यूनिवर्सिटी। कैपिटलिस्ट ने कहा हमारा काम कैसे चलेगा अगर हमें स्किल्ड लोग और एजुकेटेड लोग नहीं मिलेंगे। आपको ये मल्टीमीडिया चलाना है तो एक एक्सपर्ट आदमी चाहिए, आपको लिखना है तो लिखने वाला होना चाहिए, क्योंकि आपका हजम बढ़ रहा है कारोबार का। तो कैपिटलिस्ट ने चंदा करके यूनिवर्सिटीज बनाई हैं अपने लिए, अपने मकसद के लिए। फिर उसको एक तकद्दुस का दर्जा दिया गया। ये नहीं बताया गया कि हम आपको स्किल्ड कर रहे हैं। आप अगर मास कम्युनिकेशन के टीचर हैं और मास कम्युनिकेशन पढ़ा रहे हैं, तो आप जंग के लिए, एक्सप्रेस के लिए एक स्किल्ड वर्कर तैयार कर रहे हैं। आप अगर किसी को एजुकेशन पढ़ा रहे हैं, तो आप इन्हीं इदारों के लिए एक अच्छे टीचर को तैयार कर रहे हैं। ये मकसद है एजुकेशन का। मेरे पहले सवाल है ना, क्या मकसद हो सकता है एजुकेशन का? तो मकसद तो यही है। तो ब्रिटिशर्स ने भी यही किया, अपनी हिस्ट्री। फिर उन्होंने फोर्ट विलियम कॉलेज, और चूंकि उनके पास वसाइल थे, चीजें थी, हमारे लोग इतना नहीं था मामला, तो उन्होंने अपनी चीजें सामने ये लेके आए। यहाँ पे नालंदा की यूनिवर्सिटी थी, शादरा जो कश्मीर है वहां की यूनिवर्सिटीज थी। मतलब यूनिवर्सिटीज इस सेंस में नहीं, ये तो ब्रिटिश सेंस ऑफ यूनिवर्सिटी है जिसको आज हम देख रहे। ये तो ब्रिटिश का सेंस है कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा, या उन्होंने अपने पास 14th और 15th में ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज बनाए। ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज में चर्च की मौजूदगी के बावजूद, शहनशाही गवर्नमेंट, शाही हुकूमत के बावजूद वो आजाद थे। जब भी उन्होंने तरक्की की है, वो अपने मुल्क में उनकी पॉलिसी कुछ और थी और यहाँ पर पॉलिसी कुछ और थी। और कोई सवाल? जी जी कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब, आपका जो सारे एक्कोलेट्स एंड एसोसिएशंस और एट्रीब्यूशंस जो मोहतरमा ने गिनवाई थी शुरू में, मैं पहले तो आपकी ज़ौजा मोहतरमा को सलाम करना चाहता हूँ कि पता नहीं क्या सोचती होंगी आपके बारे में कि आप किधर रहते हैं। नंबर 2 कि ये सारी जो एसोसिएशंस हैं, ये आपकी एजुकेशन सिस्टम की वजह से, आपने पीएचडी किया हुआ है,
आप बताना चाहेंगे बाद में जब आंसर करेंगे कि ये आपने कहाँ से किया और इससे पीछे जो आपकी सारी एजुकेशन है वो कहाँ से आई है। नंबर 2 के जो डिस्टॉर्टेड हिस्ट्री की आपने पाकिस्तान की बात की है, ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव की आप बात कर रहे थे, तो आपने जिस डिसिप्लिन में एजुकेशन ली है, क्या आप टिल्टेड नहीं है उस तरफ बहुत शिद्दत से कि जो जिस एरिया में जिस डिसिप्लिन में आपने सारी एजुकेशन ले ली है उसमें जितनी भी हिस्ट्री है वो सारी ठीक है और बाकी डिस्टॉर्टेड है? तो क्या ये सब्जेक्टिव अप्रोच नहीं है? वैसे देखा जाए तो पाकिस्तान और कायदे आज़म और अल्लामा इकबाल उनके बारे में तो बहुत कुछ और भी कहा गया है, सेकुलर स्टेट बनाना चाहते थे, हमारी तो करारदाद भी किसी अहमदी ने पेश की थी बजाय कि कायदे आज़म ने पेश की होती। तो मेरा आपसे सवाल ये है कि इस बारे में आपका क्या ख्याल है कि ये डिस्टॉर्टेड हिस्ट्री है या वो ये सब्जेक्टिव अप्रोच है या ये ऑब्जेक्टिव अप्रोच है? तीसरा सवाल और भी बहुत हैं लेकिन ऑफ कोर्स कंस्ट्रेंट्स हैं टाइम के, और भी सवालात हैं। तीसरा सवाल मेरा ये है कि एजुकेशन, एक दफ़ा आप बताइए कि एजुकेशन क्या होती है और आपके जहन में एजुकेशन का क्या मॉडल है? मेरा ख्याल है मैं यहीं से शुरू करता हूँ कि एजुकेशन क्या है। देखें, मेरे लिए एजुकेशन है कायनात का शऊर, जिसमें ये दुनिया भी शामिल है और उस दुनिया की हर वो चीज़ जो कि खारिज में एग्जिस्ट करती है। मेरे लिए एजुकेशन ये नहीं कि जो मेरे जहन में चल रहा है, मेरे जहन से बाहर जो चीज़ अपना आज़ादाना वजूद रखती है, जैसे कि ये रखती है या ये बोर्ड है, मेरे ख्वाहिशात, मेरे ख़यालात, मेरे अपने तासुबात, मेरे अपने जज्बात, ये सब कोई मायने नहीं रखते। एक तो ये मेरे लिए एजुकेशन ये। करारदाद की बात थी, आप सर ज़फ़रुल्लाह खान को रेफ़र कर रहे हैं शायद। उस वक्त तो अहमदी नहीं, मतलब वो गैर मुस्लिम नहीं थे, उस वक्त तो वो मुस्लिम्स ही थे। तो 74 में आके उनको एक कॉन्स्टिट्यूशनली उन्हें क्या कर दिया गया, इस पर खैर हम क्या बोलें, अब अगेन एक मसला ही है। तो 74 का है वो सारा लेजिस्लेशन जो हुई हमारी, सब चीजें। खैर, कहने का मकसद ये है कि सच क्या है, सच को कैसे तलाश किया जाए। आया जो मैं कह रहा हूं वो सच है, आया जो सरकार आपको पढ़ा रही है वो सच है। कायदे आजम सेकुलर थे नहीं थे, 11 अगस्त को उनकी तकरीर का रेफरेंस दे के कि आप अपने मंदिरों में, मस्जिदों में, चर्च में, गुरुद्वारे में जाने के लिए आज़ाद हैं, एक ये जुमला है कायदे आजम का, ठीक है, उसको लिया जाता है। दूसरी तरफ हम दीगर पॉलिसीज देखते हैं तो देखें, कोई भी शख्सियत है ना, वो रुकी हुई, ठहरी हुई नहीं होती है। सियासत फ्लक्चुएशन का नाम है, पॉलिटिक्स अनइवन चीज है, ये सीधी सीधी नहीं चलती है, पॉलिटिकल प्रेशर्स होते हैं। आपसे अगर पूछा जाए कि पाकिस्तान क्यों बना, तो आप कहेंगे इस्लाम के लिए, या कोई भी कह सकता है इस्लाम के लिए। ये एक नैरेटिव है ना, पाकिस्तान क्यों बना, इस्लाम के लिए, या क्यों बना, मुसलमानों के लिए, ठीक है, एक नैरेटिव है। मुस्लिम लीग बनाई गई, मुस्लिम लीग का कभी मंशूर आपने पढ़ा है? 1906 में जो मुस्लिम लीग बनी है, कभी उसका मंशूर पढ़ लीजिएगा, मैनिफेस्टो। पहला जुमला स्टार्ट हो जो करते हैं कि मुस्लिम लीग एज पॉलिटिकल पार्टी ताज बरतानिया की वफादार रहेगी। मुस्लिम लीग, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, इस मुस्लिम लीग की बात नहीं कर रहा हूँ। एक मुस्लिम सैलरीड क्लास जो ये समझती थी कि अब चूंकि डेमोक्रेसी यहाँ पर आ चुकी है, वेस्ट मिनिस्टेरियल डेमोक्रेसी यहाँ पर नाफिज हो चुकी है अंग्रेजों की वजह से, अब हम यहाँ रूल नहीं कर पाएंगे। सैलरीड क्लास, तनख्वाहदार तबका, जो कि प्रोफेशनली ये सोच रहा था कि अब हम यहाँ, हमारे मफादात सेफ या सिक्योर नहीं है, वो मूवमेंट क्रिएट हुई। अब आप उसको इस्लाम के नाम की मूवमेंट समझ लें, आप उसको मुसलमानों की मूवमेंट समझ लें, लेकिन ये ऐसे नहीं था, बल्कि मुसलमानों के अंदर एक इलीट रूलिंग क्लास, हर मुसलमान बराबर नहीं है, हर कम्युनिटी के अंदर ऊंच नीच है, हर ज्यू बराबर नहीं है। हम तो समझते हैं सब यहूदी एक जैसे हैं, अश्कनाजी, सफेदियन और एथोपियन सब अलग अलग होते हैं। तो मुस्लिम की जो इलीट रूलिंग क्लास थी, रूलिंग इलीट जिसको हम कहते हैं मुस्लिम्स में, आप नाम देख लें मुस्लिम लीग बनाने वाले कौन थे, सारे के सारे इलीट के लोग थे। ये उनकी तहरीक थी कि अब हम हुकूमत यहाँ नहीं कर पाएंगे, 1% 1 वोट, कहाँ स्टैंड करते ये सब इतनी बड़ी हिंदू मेजोरिटी में। तो आप इस पर हमजा अलवी की किताबें पढ़ें, उसकी 3 किताबें इसी पर ही आ चुकी हैं। पाकिस्तान की तश्कील पर वो 3 किताबें लिख चुके हैं। वो बरतानिया में पढ़ाते रहे, कनाडा में पढ़ाते रहे, मुख्तलिफ दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज में पढ़ाते रहे। हमारे कराची के थे, बोरी थे, डॉक्टर हमजा अलवी।
मेरे लिए तो जो मेरी अब तक की रिसर्च है, जो मैंने अब तक मालूमात हासिल की है, जो अब तक मैंने हजारों किताबें पढ़ी हैं, उसमें तो यही था कि एक रूलिंग इलीट ने एक मुल्क बनाना था और उसको देख के थ्योराइज किया जाता है। लीडर जब भी कोई बात करता है ना, लीडर वो उसको अवाम का मुकदमा बना के पेश करता है, लेकिन लीडर के इंटरेस्ट हमेशा डिफरेंट है, चाहे वो किसी सियासी जमात का लीडर हो, चाहे वो किसी मजहबी जमात का लीडर हो, लेकिन वो अपने उन बातों को अवामी बना के पेश करता था कि अवाम उसके साथ आए और उसको सपोर्ट हासिल हो, जबकि इंटेंशन उनके बंद कमरों की बातें, उनकी और सब चीजें ये बहुत डिफरेंट होती है, बहुत डिफरेंट होती है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर अभी रिसेंट हिस्ट्री है हमारी, 1938 सेकेंड वर्ल्ड वॉर में आप मुस्लिम लीग एज अ पॉलिटिकल पार्टी उसका रोल पढ़ लीजिए और कांग्रेस का रोल पढ़ लीजिए। कांग्रेस वाले वॉर को अपोज कर रहे थे कि हमारे सिपाही नहीं जाएंगे मरने के लिए, हमारा पैसा नहीं लगेगा बर्तानिया की जंग में। मुस्लिम लीग उसको सपोर्ट कर रही थी। फौजी भर्ती के सेंटर्स पूरे पंजाब में इन्होंने खोले थे मुस्लिम लीग ने जागीरदारों के साथ मिलकर। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में मुस्लिम लीग उस इंपेरियलिस्ट वॉर को सपोर्ट कर रही है और कांग्रेस उसके अगेंस्ट खड़ी हुई है, और जिसके नतीजे में कांग्रेस की पूरी लीडरशिप जेलों में और मुस्लिम लीग वाले जरा होता है ना, जैसे किसी पर जबर जब होता है, अभी रिसेंटली आपने देखा होगा हमारी सियासी जमातों के साथ, तो सेम सिचुएशन थी उस वक्त। आप स्टडी कर लीजिए, फौजी भर्ती के मराकज सारे पंजाब में, सारे पंजाब से जबरदस्ती फौजी, अच्छा रेजिस्ट भी हुआ है, ये कोई अपने शौक से नहीं गए, एक बात याद रखिएगा। ये जो हम डेरोगेटरी तौर पर चीजों को देखते हैं ना, अगर यहाँ गिलगित के बच्चे बैठे हुए हैं, गिलगित का कोई दूर उफ्तादा गांव का शख्स एनएलआई में जाता है ना, उसकी फैमिली दुआएं मांगती है, हमारा बच्चा बरसरे रोजगार हो गया। अगर उसको गिलगित स्काउट्स में नौकरी मिलती है ना, वो शुक्राने बजा लाते हैं। तो पंजाब के वो इलाके जहां खेती बाड़ी नहीं है, तो फौज में ही जाएंगे, जहां गुर्बत होगी, जहां बेरोजगारी होगी, तो वो उस इंपेरियलिस्ट वॉर का हिस्सा बने। ये पूरा पोटोहार की पट्टी, ये कश्मीर की पट्टी, ये तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो ये हमारे पॉलिसी मेकर्स थे कहीं ना कहीं, गांव का नंबरदार, गांव का चौधरी, वो जी कुर्सी लगा के बिठाता था, गोरा साहब बैठता था और आ जाओ भी नंबर 1 नंबर 2 और जाओ मरने के लिए, हमारी जंग लड़ो अगेंस्ट फिला फिला फिला, जो भी वॉर थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो सियासत कोई सिंगल रियलिटी का नाम नहीं है, बहुत वेरिएशंस हैं, बहुत वेरिएशंस है। तो पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, आपको भी और मुझे भी। और कोई? जी जी सर, मेरा क्वेश्चन है कि हम बात करें पेडागोजी ऑफ द ऑप्रेस्ड, तो नो डाउट आप जो बात कर रहे थे, कंट्रोल्ड इकोनॉमी, कंट्रोल्ड पॉलिसीज, कंट्रोल्ड माइंड, अच्छा ब्रिटिश लॉयलिटी हमारी हमारी स्टेट की किसी हद तक ऑब्वियसली, बल्कि पूरी स्टेट की। तो अब स्टेट तो पॉलिसी ये सब लेके आ रही है, हमारे टीचर्स जो हैं, हम अगर ऑप्रेस्ड में बात करें, इंडिविजुअली हमें मेंटली फ्री होने की जरूरत है। अच्छा, दूसरा ये कि यहाँ से हमें रिच होने की जरूरत है, माइंड से रिच होने की जरूरत है ना। हम बात करें वेल्दी होना, लाइक मटेरियल और इन चीजों। अच्छा, अब इसमें टीचर्स क्या रोल प्ले कर रहे हैं कि बच्चा एक एनालिटिकल कैसे हो, क्रिटिकल कैसे हो। हम तो ओवरऑल एज ए टीचर्स हम इतना स्टेमिना या पेशेंस नहीं रखते कि हम क्वेश्चन सुन सकें, हम उन क्वेश्चंस को बेयर कर सकें। तो हम बात कर रहे हैं कि बच्चा मेंटली फ्री हो, आप जो बात करें ऑप्रेस्ड होने से हम तब निकलेंगे जब हम एनालिटिकल होंगे, एनालिसिस हमारा स्ट्रांग होगा, वो नहीं हो पा रहा, पहली बात। दूसरी बात ये है कि हम जिनसे अभी बात कर रहे हैं ये फ्यूचर टीचर्स हैं, तो ये किस तरह से इस ऑपरेशन से अपने स्टूडेंट्स को निकालें, सबसे पहले खुद निकलें। किस तरह से स्टेट जो कर रही है, हम इंडिविजुअली, हम पर्सनली क्या ऐसा कुछ करें कि हम इस ऑपरेशन से किसी तरह निकल आए, हमारे बच्चे फ्री हों, हमारे बच्चे जो लाइक मिसाल देती हूँ मैं, हम रिसर्च करना चाहते हैं, ये ना करें इस पे, मतलब ये इसका स्कोप नहीं होगा, बाहर जाएंगे ये नहीं करेंगे, ये टॉपिक हमारे मुल्क से रिलेटेड है, ये वहां से रिलेटेड रिसर्च की बात करें, हम कैसे उनको फ्री कर देंगे, वो चीजों को फाइंड आउट करें खुद से। अच्छा, ऑथेंटिकेट करना नॉलेज को, कि उनको वो बहुत सारी उनके पास सोचें हैं, उनके पास बहुत सारे आइडियाज हैं, ऑथेंटिकेट नहीं कर पाते। हम ऑथेंटिकेट करते हैं, वही आपके वाली बात की कहीं और से हमारी नॉलेज भी ऑथेंटिकेट होती है, उनकी भी होती है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि मैं भी एक स्टूडेंट भी हूँ, मैं एक टीचर भी हूँ, मुझे प्लीज आप ये गाइड करें कि इस ऑपरेशन से हम अपने स्टूडेंट्स को कैसे निकालें और हम खुद भी कैसे निकलें। कि एक वो अगर हम स्टेट को और ब्रिटिश को निकाल दें, और एक हम पर्सनली इंडिविजुअली अगर हम बात करें। थैंक यू। मेरा ख्याल है इसका जवाब जो है वो फ्रेरे के अल्फाज में देना चाहिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, तालीम को मसला बनाकर पेश करना। फ्रेरे जो इसका एक हल हमें देता है, चूंकि वो 6 साल खुद जलावतन रहा,
एक एजुकेशनिस्ट था और उसने वहाँ के सियासी मामलात देखे थे। तो वो कहता है कि अगर इस निज़ाम तालीम के बरक्स या अगेंस्ट या पैरेलल कोई सिस्टम आ सकता है तो वो प्रॉब्लम सॉल्विंग सिस्टम है कि जिसमें स्टूडेंट टीचर्स का एक मकालमा हो, एक डायलॉग हो। जैसे मैंने पहले कहा कि आप एट द सेम टाइम स्टूडेंट भी हों, आप सीखें भी। मैं अगर नहीं सीखूंगा मेरी नॉलेज नहीं बढ़ेगी, मैं आपसे नहीं सीखूंगा, मैं अपने लोगों से नहीं सीखूंगा। और मैं ये प्रैक्टिस अपनी क्लास में करता हूँ। आपको सुनकर बड़ी हैरत होगी कि ज़ाहिर है अब हम जरा से ना ओल्ड स्कूल हो गए हैं, थोड़े से आउटडेटेड हैं। जो आप अभी आप कदरे यंग भी हैं, ज्यादा चीजें हमसे बेहतर समझते हैं, न्यूली चीजों के साथ आपका कनेक्शन हमसे बेहतर है। तो मैं अपनी क्लास में सीखता हूँ, मैं फैशन के मुतालिक सीखता हूँ कि आजकल क्या चल रहा है, ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं, हमें इतना नहीं पता होता। हम थोड़े से कहा ना कि गुजर गए एज से। तो ये यंग बच्चा बताएगा मुझे 20, 22, 25 साल का कि करंटली क्या चीज हो रहा है। मैं अपने बेटे से पूछता हूँ कि क्या चल रहा है, मैं उससे सीखता हूँ। और जो वो बातें बताते यकीन करें हमें किताबों में नहीं मिलती, जो बच्चों के अपने एक्सपीरियंसेस हैं हमारी क्लास के, जब हम उनसे पूछते हैं, जब आप पूछेंगे, उन पर ट्रस्ट करेंगे, यकीन करें वो आपको सिखाते हैं। और मैं सीखता हूँ लोगों से, उनके मुत्तलिक बहुत सारी बातें करता हूँ, क्या हो रहा है। हम साइकोलॉजिकल डिस्कशन भी करते हैं, हम एंजाइटी और स्ट्रेस को भी डिस्कस करते हैं। हर चीज इंसान के साथ है। आप कोई एब्स्ट्रैक्ट में टीचर नहीं है, आप एक इंसान भी हैं और एक इंसान को पढ़ा रहे हैं सामने। तो उसके नफ्सियाती मसाइल भी हैं, उसके माशी मसाइल भी हैं, उसके 10 तरह के मसाइल हैं, उनको भी हम डिस्कस करते हैं, समझते हैं, सुनते हैं। और अगर हम ये नहीं सीखते तो हम क्लासेस की पाबंदी को सॉफ्ट नहीं करते। हमें पता है इन्फ्लेशन है, हमारी यूनिवर्सिटी में लोअर मिडिल क्लास बच्चे आते हैं, हमने 3 दिन के बजाय उसको 2 दिन कर लिया कि 1 दिन रिलैक्स मिले। ये डिस्कशन से ही आया है सामने। तो मेरा ख्याल है कि जो फ्रेरे कहता है कि तालीम को आजाद होना चाहिए तमाम तर मकासिद से। अब इसमें जी डिस्कशन से, डायलॉजिकल डायलॉग, मकालमा टीचर्स और स्टूडेंट्स के दरमियान, और दोनों एट द सेम टाइम सीखने और सिखाने वाले बने। वो कहता है कि एजुकेटर लर्नर, देन लर्नर एजुकेटर, एजुकेटर लर्नर, लर्नर एजुकेटर, उस्ताद तालिब इल्म उस्ताद, इस तरह से है। तो ये है। और कोई? ओके, थैंक यू सो मच सर। जब थैंक्स तो यास्मीन साहिबा का है जो बुलाए। थैंक यू मैम। जब मैं इस राइटर को पढ़ रही थी और क्रिटिकल कॉन्शियसनेस की बात कर रही थी, जब टेक्स्ट से इंटरेक्ट कर रही थी, बिकॉज इट इज हमारे डायमेंशन में ये चीज़ें डिस्कस होती है, तो जब उससे इंटरेक्ट कर रही थी तो मेरे माइंड में एक सवाल उठ रहा था कि वी आर द पीपल, वी आर हियर इन द हायर एजुकेशन। तो क्या पाकिस्तान में हायर एजुकेशन में जो भी बच्चे हैं, क्या हम उनके अंदर क्रिटिकल डेवलपमेंट कर रहे हैं, या फिर उनको इस बात की इजाजत देते हैं कि शुड दे रेज देयर वॉइस? बहुत अच्छा सवाल है आपका। वाकई हमारे पास ऐसे प्लेटफॉर्म है ही नहीं, बल्कि फ्रेरे के अल्फाज में कहूँगा कि टीचर अपने आप को आलिम समझता है और स्टूडेंट्स को जाहिल समझता है। वो समझता है कि स्टूडेंट्स को तो कुछ भी नहीं आता और ये टीचर का ही काम है कि वो स्टूडेंट्स को सिखाए, और स्टूडेंट्स ने चुपचाप खामोशी के साथ, आजिज़ी के साथ सुनना है और सीखना है, और बोलना नहीं है। बोलने का काम तो टीचर का, एक्टिव एंड पैसिव। तो ये है, फोरम्स नहीं दिए जाते हैं, और हम ना एक अजीब और गरीब फॉल्स मेरिटोक्रेसी का शिकार हैं। हम स्टेज पर उसे बुलाएंगे जो अच्छा बोलना जानता हो, जो अच्छा बोलना नहीं जानता हम तो उसे स्टेज कभी देंगे ही नहीं। हम फॉल्स मेरिटोक्रेसी का शिकार है। ठीक है, एक बच्चा जरा कमजोर है, नहीं बोलना जानता, उसकी लैंग्वेज इतनी ठीक नहीं है, आप उसे मौका दें, पुख्तगी नहीं है, आ जाएगी, सीख जाएगा। लेकिन हम सिखाना नहीं चाहते, हम तो उस मेरिटोक्रेसी का शिकार है ना। देखिए, एक बच्चा जब ग्रेडिंग सिस्टम पर काफी बात होती रहती है, एक बच्चा फर्स्ट पोजीशन आता है, वो खुश होता है ना। आपको पता है खुशी किस बात की होती है? खुशी इस बात की नहीं होती कि मैं फर्स्ट पोजीशन आया हूं, खुशी इस बात की कि मैंने सबको हराया है, सबको पीछे किया है। ये हम सिखाते हैं, और यही बच्चा फ्यूचर का वायलेंट बच्चा बन सकता है। सबसे जीतना है, भागना है, सबको धक्का लगाना है। इसलिए नहीं कि मुझे कोई नंबर मिल रहा है ना, मैं अपने कॉलीग्स को, अपने फ्रेंड्स को, अपने दोस्तों को हरा रहा हूं। घर में आके बच्चे बातें करते हैं कि मैं उसके पास ये तो मेरे पास ये क्यों नहीं है। उसको उसकी नीड नहीं है ओरिजिनली, लेकिन सोसाइटी ऐसी डेवलप्ड है और हमारा सिस्टम ऐसा है कि उसको ये चीज हासिल करनी है, उसको दिखाने के लिए, उसको जताने के लिए, अपने दोस्त को जिसे वो दोस्त कहता है।
तो हम एक अजीब और गरीब मेंटेलिटी को डेवलप कर रहे हैं एजुकेशन के नाम पर। ये ग्रेडिंग सिस्टम खैर बहुत सी जगहों पर अब नहीं है, बहुत सी जगहों पर अब नहीं है, लेकिन है बहरहाल एक सिस्टम है, टूटते टूटते टाइम लगेगा। और ये चीजें देखें, यूनिवर्सिटी लेवल पर हम किसी को अफलातून नहीं बना सकते, दिस इज रॉन्ग। आप समझते हैं कि आप लम्स में जाकर, आईबीए में जाकर, एकेयू में आकर अल्लामा बन जाएंगे, ऐसा तो नहीं। आपका पूरा एक बैकग्राउंड है साथ साथ, पीछे चल रहा है वो, और उससे आप कभी जान छुड़ा नहीं सकते। इंसान कभी भी अपने बैकग्राउंड से, अपने साइकोलॉजिकल बैकग्राउंड से, अपनी कंडीशनिंग से, अपने वर्ल्ड व्यू से, अपने मोहल्ले से, अपने खानदान से जान छुड़ा ही नहीं सकता। वो कहीं ना कहीं उस पर असरअंदाज होते रहेंगे। तो यूनिवर्सिटीज नहीं, हायर एजुकेशन कमीशन को खत्म करके लोअर एजुकेशन कमीशन बनाना चाहिए। उस पर पब्लिक इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए ताकि बच्चे बेहतर होके बाहर निकले। यहाँ तो 1% लोग आ रहे हैं, 99 तो वैसे ही आउट है। 1% को चले हमने ठीक भी कर लिया, चले मान लिया कि हमने 1% को स्टेट ऑफ द आर्ट ठीक भी कर लिया, फिर भी 99% तबाही है, वो तो रहेगी। उसका क्या करेंगे? मैं तो पढ़ा लिखा हूं, लेकिन बाहर तो 99 लोग जाहिल बैठे हुए, तो मेरी तालीम किस बात की? तो लोअर एजुकेशन कमीशन बनना चाहिए, नॉट हायर एजुकेशन कमीशन। नेक्स्ट। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन जो है एजुकेशनल पॉलिसीज के हवाले से है कि आपने कहा कि जितने भी एजुकेशन पॉलिसीज पाकिस्तान में आए हैं ये अंडर जो है फॉरेन उन कंट्रोल के ऊपर आए हैं, लेकिन जब मैं देखता हूँ 1959 के कमीशन 62 के या उसके बाद वाले में, अगर हम प्रीवियसली जब जाते हैं तो उसमें जो हमारा पॉलिसी का जो एम होता है टेक्निकल एजुकेशन या इस तरह स्किल्स डेवलपमेंट में, और जो रिलीजियस उसकी तरफ जब आते हैं ना, वो 72 के बाद, या हम पेट्रियटिज्म की बात कर लेते हैं, फिर जो है 82 में आके हम रिलीजियस को इन्वॉल्व कर लेते हैं, रिलीजन को और इन्वॉल्व करते आ रहे हैं 2002 में, 2009 में, इस तरह से। तो मुझे इसमें मैं उसको भी ये कह रहा हूँ कि ये हमारी अपनी है। वजह ये है कि हम खुद इन पे ये चीज़ें लगा रहे हैं। जैसे इन दिनों बानू में जो हुआ है, शायद आपने सोशल मीडिया में देखा होगा कि कहाँ पे? बानू में जो वाकया बनू में, हुआ, जी जी, प्रोफेसर शेर अली। हाँ, प्रोफेसर शेर अली के साथ। क्या चलो अगर हम कहते हैं कि नॉर्मल एजुकेशन में जो हम जैसे लोग, हम प्राइवेट या पब्लिक स्कूलों से आते हैं, हम पे पॉलिसी का असर है, वो लोग जो मदरसे से या दूसरे नॉन फॉर्मल एजुकेशन, उन एजुकेशन से आते हैं, तो उन पे किसने इन्फ्लुएंस किया है कि वो ऐसे काम कर रहे हैं? क्या हमारा रिलीजियस जो स्टेक होल्डर हैं उनका ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं है हमारी पॉलिसी पे देन के फॉरेन जो है उन पॉलिसीज का? देखिए, सबसे पहले तो जो शुरू में आपने बात कही कि नजरिया पाकिस्तान, 71 में जब पाकिस्तान दो हिस्सों में तकसीम हुआ, बांग्लादेश अलग हो गया, तो हमारे सिलेबस में नजरिया पाकिस्तान के नाम से, फिर बाद में उसको तब्दील करके मुताला पाकिस्तान उसका नाम रख दिया गया। आजकल जो आप पाकिस्तान स्टडीज पढ़ते हैं, जनरल शेर अली जो थे उन्होंने उसको इंट्रोड्यूस किया कि अब चूंकि भाई एक हिस्सा तो चले गया, चूंकि बंगाली नेशनलिस्ट थे, चूंकि वो पता नहीं क्या थे, तो 71 के बाद एक मेजर शिफ्ट आता है हमारी एजुकेशनल पॉलिसी पर। सब डर गए कि यार ये मुल्क आधा टूट गया, ये इस्लाम के नाम पर तो रहा नहीं साथ। हमने तो इसको इस्लाम के नाम पर हासिल किया, लेकिन वो तो बंगला नेशनलिज्म। और जिस दिन बांग्लादेश बन गया तो कायद आज़म की तस्वीर उतार के रविंद्रनाथ टैगोर की तस्वीर लगाई गई। अगर आपने किसी ने उसका नाम सुना हो, एशिया के पहले नोबेल अवार्ड याफ्ता रविंद्रनाथ टैगोर, गीतांजलि को एशिया में सबसे पहले उन्हें नोबेल अवार्ड मिला। और रविंद्रनाथ टैगोर वो शख्सियत थे कि जिन्होंने जलियांवाला बाग के मामले पर अपने तमाम एजाजात हुकूमत के मुंह पर मार दिए। अल्लामा इकबाल ने नहीं मारे थे, उन्हें भी सर का खिताब मिला था। खैर, तो 71 के बाद एक खौफ था कि भाई इनको कैसे अब ये नजरिया पाकिस्तान के नाम पर, और जो टूटे फूटे मामला थे। फिर आप देखते हैं कि किसी जमाने में हमारे यहाँ एक जंग हुई है। डिफेंस डे तो हम सेलिब्रेट करते हैं ना, यौमे दिफा, कब करते हैं? 6 सितंबर को। क्यों करते हैं? 1965 की जंग हुई। जंग हम हारे थे, जीते थे? सिलेबस में क्या बताया जाता है? और ये जुमला भी कि इंडिया ने, दुश्मन ने रात की तारीकी में हमला कर दिया, ऐसा ही है ना?
बनिए डेरोगेटरी लफ्ज हम अपने बच्चों को नफरत पढ़ाते हैं किताबों में, उर्दू में ज्यादातर कि फलां कम्युनिटी, तो मैं नाम नहीं लूंगा, ऐसी थी वैसी थी वैसी थी, ये ऐसे ये वैसे। हम ये नहीं बताते हैं कि 6 सितंबर से पहले क्या हुआ है। अब आ जाइए अप्रैल पर, 765 अप्रैल, ऑपरेशन डेजर्ट हॉक, रन ऑफ कच्छ, हमने हमला किया। गुजरात, सिंध के साथ गुजरात लगता है और राजस्थान लगता है, गुजरात बॉर्डर फोर्स और हमारी आर्मी, ऑपरेशन डेजर्ट हॉक्स, हम अंदर गए अप्रैल 65। तो उसके बाद आइए अगस्त 1965, ऑपरेशन जिब्राल्टर हमने किया। 30,000 मुजाहिदीन हमने हजारा के पहाड़ों में, मानसेरा में उनको ट्रेन किया, फिर हमने उन्हें कश्मीर अखनौर की तरफ भेजा, भुट्टो एज फॉरेन मिनिस्टर, अयूब खान प्रेसिडेंट। ऑपरेशन जिब्राल्टर अगस्त 65। फिर आ जाइए 1 सितंबर पर, 6 अभी दूर है, मैं अप्रैल पे आया, अप्रैल से अगस्त में आया, अगस्त से अब मैं 1 सितंबर पर आ रहा हूं, ऑपरेशन ग्रैंड सलाम, फॉलो अप ऑपरेशन। जब ये 3 मसले हुए, फिर 6 सितंबर पर हम पर हमला हुआ है। हम वो 3 बातें छुपाते हैं। दुश्मन ने रात की तारीकी में हमला किया, तो हमने क्या किया था? 1 सितंबर को हमने क्या किया, हमने अगस्त 65 में क्या किया, हमने अप्रैल 65 में क्या किया? ये तो कोर्स में नहीं है, ये तो सोशल स्टडीज में, पाकिस्तान स्टडीज में, आईआर में, ये पॉलिटिकल साइंस में कहीं नहीं है। मैं आपको डेट वाइज बता रहा हूं कि हमने कब क्या किया है। फिर हम पर हमला होता है, हम फिर उस हमले को भी सेलिब्रेट करते हैं। देखिए, हम ना लोगों को वॉर मॉन्गर्स बनाना चाहते हैं, जंग ज़दा, जंग, निकलो लड़ो और मरो, क्योंकि हम आपको पानी नहीं दे सकते, रोजगार नहीं दे सकते, बिजली नहीं दे सकते, हम आपको एक अच्छी जिंदगी नहीं दे सकते, तो हम आपको जंग के नाम पर इकट्ठा करते हैं। हमें दुश्मन की जरूरत है, ताकि उस दुश्मन को दिखा दिखाकर आपको आपकी सहूलतें नहीं मिल रही, 1% यूनिवर्सिटी एजुकेशन चल रही है, नीचे चोरियां डकैतियां हो रही हैं, इदारे तबाह बर्बाद हो रहे, दुश्मन है जी, दुश्मन है। और इस दुश्मन के नाम पर वो पैसा जो हमारी एजुकेशन पर खर्च होना चाहिए था, वो डिफेंस में चले जाता है। वो पैसा जो मेरी जिंदगी पर, मेरे बच्चों की जिंदगी पर खर्च होना चाहिए था, सोशल सेक्टर में, हेल्थ में, एजुकेशन में, हमें हेल्थ के नाम पे क्या मिलता है? सिविल अस्पताल की दवाएं जिनको खाकर मर जाए, ये मिलता है हमें हेल्थ के नाम पर, पब्लिक इन्वेस्टमेंट के नाम पर, पब्लिक सेक्टर के नाम पर। हम सिटीजन है, हमारा कोई हक है, आइन ने हमें हक दिया है, हक के तालीम, हक के सेहत। हक के तालीम ये है कि AKU आ जाए, पैसे भरे, हक के तालीम ये है। हक के मुलाजिमत कुछ नहीं, तो कोई हुकूक नहीं है, बस एक दुश्मन है जी, और सारी इन्वेस्टमेंट हमने वहां करनी है जी, सब यही है, दुश्मन को बड़ा चला के इतना ज्यादा इस पे लिखा गया है। और मैंने अभी IR में एक बात की अपने सर्कल में कि भाई हर वक्त आप लोग न्यूक्लियर और सिक्योरिटी पे क्यों सेमिनार करवाते, कौन पैसे दे रहा है? एक ग्रुप है हमारा पूरे पाकिस्तान का, IR का, उसमें जबर नवाज जसपाल साहब भी हैं, इस्लामाबाद वाले, बड़े सेमिनार कराते हैं, बहुत फंडेड आदमी है वो, बड़े वसाइल वाला आदमी है वो, गवर्नमेंट के पैसे हैं उसके पास, कि आप सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी पे एंड न्यूक्लियर पे सेमिनार्स कराएं। इंडिया दुश्मन, इंडिया ये, इंडिया ने ये बना लिया, इंडिया ने वो बना लिया। देखिए, ये अनएंडिंग वॉर है, एटमी दौड़ अनएंडिंग है, इनके डिजाइन बदलते रहते हैं। मैं 10,000 की घड़ी पहनूंगा, आप 20 की पहनोगे, मैं 20 की पहनूंगा, आप 30 की पहनोगे। इनके डिजाइन पर हुकूमत पाकिस्तान अरबों रुपए खर्च कर रही है रीडिजाइन करने पर, क्योंकि टेक्नोलॉजी बदलती है। किसी जमाने में आपके पास 3310 था, आईफोन आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4, ये नहीं रुकेगा। आपके बच्चे जवान हो जाएंगे, आपके पोते पोतियां हो जाएंगी, ये मॉडल नहीं रुकेंगे, आपके खरबों रुपए लग जाएंगे, ये रीडिजाइनिंग चलती रहेगी। एक आप करेंगे, एक इंडिया करेगा, फिर इंडिया जरा नई टेक्नोलॉजी लाएगा, फिर आप लेके आओगे, फिर वो लेके आएंगे, फिर आप लेके आओगे, ये नहीं रुकेगा। हम बर्बाद हो रहे हैं, हम अनएजुकेटेड हो रहे हैं, हम चोरियां डकैतियां कर रहे हैं, हम गले काट रहे हैं, हम बम धमाके कर रहे हैं। ये इन्वेस्टमेंट समाज पर होनी चाहिए, ना कि हथियारों के डिजाइन पर। खैर, एक बड़ी $multi-trillion इंडस्ट्री है ये भी। नेक्स्ट। So we have a question from our online audience. Let's take that first and then we'll go to live audience as well. So the question is that my winning means someone else's defeat. I've heard this and I accept this, but how do we change the mentality of common people? To change mentality of common people, we have to impose some better things. Pakistan is not living in an, isolated island. We can see what other people are doing and we can learn
फ्रॉम देम, उन्होंने क्या किया और वो क्या कर रहे हैं। आप सिंगल नेशनल करिकुलम ला सकते हैं, यू आर गोइंग टू इम्पोज SNC, you can impose Finnish model, you can impose Finland model. Why SNC? क्यों? एजुकेट करना है ना लोगों को। आप शुरू से ब्रिटिश करिकुलम नाफिज कर देना, अच्छा है ना, SNC से तो बेहतर है वो। आप सबको कह दे सबको हम कैम्ब्रिज फ्री पढ़ाएंगे, वो तो कैम्ब्रिज के नाम पर अरबों रुपए कमाता है ब्रिटिश काउंसिल, सिर्फ कैम्ब्रिज के नाम पे। तो सरकारी इदारे कभी भी ठीक नहीं होंगे। अगर कैम्ब्रिज ब्रिटिश काउंसिल यहाँ बैठा हुआ है, सरकारी इदारा ठीक हो नहीं सकता। वो अपने बिजनेस को तबाह होने नहीं देंगे कि आप जाके A लेवल करने के बजाय O लेवल करने के बजाय वहां चले जाए। तो हमें रेडिकल चेंजेस की जरूरत है, वी नीड रेडिकल चेंजेस। हमें एक बेसिक तब्दीली की जरूरत है, इस पूरे स्ट्रक्चर को रीडिजाइन करने की जरूरत है। एंड वी नीड न्यू सोशल कॉन्ट्रैक्ट, न्यू सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो मेरे मफाद पर हो, जो आपके मफाद पर हो, जो लोगों के मफाद पर हो। न्यू सोशल कॉन्ट्रैक्ट। अवाम, देखिए ये तो जब आप किसी पॉलिटिकल एक्टिविटी, जब किसी आप सोशल एक्टिविटी, जब आप किसी मूवमेंट का पार्ट बनते हैं ना, तो बाज़ाहिर लगता है कि ये चीजें बड़ी इम्पॉसिबल हैं, यार ये बड़े ताकतवर हैं, ऐसा हम कर नहीं सकते, ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन हो जाता है। दुनिया की हिस्ट्री है हमारे सामने, दुनिया की हिस्ट्री है, किसी एक मुल्क की नहीं, दुनिया में बहुत सारे ऐसी चीजें हैं कि जिन्होंने अवामी ताकत की बदौलत, अवाम की, किसी फैक्शन की नहीं, किसी प्रॉक्सी ऑर्गेनाइजेशन की नहीं, किसी फंडेड नहीं, अवाम की, अगर अवाम उठ खड़े होंगे, आपको क्या लगता है, कराची 3 करोड़ का शहर है, फलस्तीन का सबसे बड़ा मसला चल रहा है, 1000 लोग जमा नहीं होते यहाँ पे, वैसे सब इस्लाम इस्लाम करते हैं, सब करते हैं। फलस्तीन के लिए 1000 लोग, हमने बहुत कोशिश की ऑर्गेनाइज करने की, बहुत ज्यादा, हम 3 करोड़ के शहर में 1000 लोग जमा नहीं कर सके। डीपोलिटिसाइजेशन, डीपोलिटिसाइजेशन, लोग डीपोलिटिकलाइज हैं। आपको क्यों सपोर्ट करना चाहिए, आपका मसला नहीं है, लोग तो ये समझते हैं, तो मेरा तो मसला नहीं है, वहां बमबारी हो रही है। एक प्रिंसिपल तो होता है ना किसी का, एक उसूल, एक 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 आप खड़े होते हैं जिस पर, एक आइडियोलॉजी होती है। तो एक डीपोलिटिसाइजेशन है यहाँ पर सोसाइटी में, सोसाइटी हमारी टोटल जो है ना वो डीपोलिटिसाइज्ड है टोटल। इसीलिए हम चेंज की तरफ नहीं बढ़ते। चेंज अच्छा कोई कर रहा है तो हमें हमें लगता है कि ये पता नहीं क्या कर रहा है। अगर कोई कर भी रहा है ना, कभी प्रेस क्लब पर किसी रीगल, किसी रैली, किसी उसमें, हमें लगता है भाई क्या कर क्या रहा है ये, क्योंकि हम डीपोलिटिसाइज्ड है। हमें कभी भी टीम वर्क नहीं सिखाया गया, हमें बताया गया कि यू आर एन इंडिविजुअल, तुम हो और तुम ही हो। ये गलत कॉन्सेप्ट है। हम हैं, ये होगा। इंडिविजुअल कुछ नहीं कर सकता, हम टीम वर्क नहीं कर सकते, हम लोगों के साथ सोशलाइज नहीं कर सकते, हम लोगों के साथ बैठकर बात नहीं कर सकते, हम अजीब गरीब होते हैं। आप हमारे रवैये आप चेक करें ना, हमारे रवैये बहुत अजीब गरीब नहीं है। हम लोगों के साथ मिलकर काम नहीं कर सकते, हमें प्रॉब्लम्स होती हैं, हमें काटने लगता है लोगों का बिहेवियर, क्योंकि हम सब ऐसे ही हैं। मिलकर किसी गोल को अचीव करना हमें कभी नहीं सिखाया हमारे एजुकेशन सिस्टम ने। मुकाबला करना सिखाया, लोगों को पीछे करना सिखाया, और तुम इनफरादी शख्स हो, तुम इंडिविजुअल हो, तुमने करना है। तो भाई एक शख्स तो कुछ नहीं कर सकता। जैसे वो कहते हैं पाकिस्तान किसने बनाया, मैंने और मेरे टाइपराइटर ने, ये स्टेटमेंट है, पाकिस्तान मैंने और मेरे टाइपराइटर ने बनाया। तो अब क्या फिर किया जाए, इस तरह की सोच है तो। जी 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 बिल्कुल, हमने बहुत बिल्कुल बिल्कुल हमने की हैं, बल्कि अभी मंडे को हम एक और प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं अपने ही कैंपस में, अपने स्टूडेंट्स और दीगर टीचर्स के साथ मिलकर। देखिए जहाँ तक हमारे डिपार्टमेंट की बात है, तो हम उस एज अ होल सोसाइटी का एक छोटा सा पार्ट है। हमारी अचीवमेंट ये है कि हमने अपने वसाइल पर, मैं यास्मीन साहिबा से भी कह रहा था कि मांग तांग कर हम कॉन्फ्रेंसेस करते हैं। हमने अभी 10 अक्टूबर को पॉलिश एम्बेसडर को इस्लामाबाद से बुलाया। हमारे पास आर्ट्स कौंसिल के पैसे नहीं थे, हमने सिफारिश की किसी से कहकर हमें फ्री दिलवा दो। हमें जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत होती है हम फैसल हदीस से बात करते हैं, वो हमारी मदद कर देता है। वसाइल हमारे पास नहीं है। हमारी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ में सैलरीज टाइम पर नहीं मिलती हैं। तो ये हमारा एक वैसे ही एक वो है
कि ठीक है जी बड़े प्रोफेसर है, ऐसा है वैसा है। तो HSC का फंड जो है वो इस साल का वो कोई 80 अरब 85 अरब रुपए, उसमें भी फिर डेवलपमेंट का अलग है, उसी के अंदर ही है 80-85। आप अभी गूगल करें MIT के एनुअल बजट को और ऑक्सफोर्ड के एनुअल बजट को, आपका सर घूम जाएगा। कहा हमारी पूरी HSC जो पूरे पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज की रेगुलेटरी बॉडी है, 200 यूनिवर्सिटीज है यहाँ पर इंक्लूडिंग AKU, 200, 85 अरब। और एक ऑक्सफोर्ड या MIT या हार्वर्ड या याले के एनुअल बजट को देख, तो फिर क्या सक्सेस स्टोरी होगी, क्या होगा? सक्सेस के लिए तो बुनियादें जो चाहिए वो तो नहीं है। तो ये सवाल होना चाहिए कि हम क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं आगे, इतने लफाजियों के बावजूद, इतने अच्छी अच्छी रिपोर्ट्स के बावजूद हम बर्बाद क्यों हैं? तो बुनियादी वजह है कि पब्लिक इन्वेस्टमेंट एजुकेशन पर नहीं है, क्योंकि प्रायोरिटी नहीं है। एजुकेशन अगर ये हासिल कर लेंगे तो ज्यादा परेशान करेंगे, और फिर जो एजुकेशन दे रहे हैं वो भी अल्लाह ही हाफिज है उसका। तो कभी इसको कंपेयर कीजिएगा आप कि छोड़ें आप ऑक्सफोर्ड को और इनको, आप अपने पड़ोसी ममालिक को देख लें, आप ईरान, आप चाइना, आप इंडिया, इन्हीं को देख लें। अब आप बांग्लादेश को ही देख लें, वो हमसे आगे जा रहा है चीजों में। तो कुछ तो है ना, हम सीखना नहीं चाह रहे। हमने जैसे अभी इन्होंने सवाल किया कि हम रिलीजियस फैनेटिक्स को जो है ना वो आगे, जिस पर आके भाई तुम ये माफीनामा, तुम्हारी वीडियो और DC साहब और ये सब क्या है? हम कौन से कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं कि अगर आप सोचने समझने वाले तो यहाँ से भाग जाएं, आप चले जाएं यहाँ से, ये मुल्क आपके रहने के लिए नहीं है। हम इस कल्चर को प्रमोट करने वाले हैं। उसे रोका भी जा सकता था ना, लेकिन हम उससे पाकिस्तान भर में दिखाते हैं कि सोचोगे तो ये हाल होगा। तो ये मसला है। Okay. Firstly, I want to say thank you to sir for giving us like new dimension of thinking. And besides that, I have a question to ask. Because you have said कि जो हमारा education system है, ये हमारी political जो party है उसने decide किया हुआ है, उन्होंने मिल के ये बनाया हुआ है, ये कोई ऐसा system है जो वो हमें चला रहे हैं उसके मुताबिक। तो अगर तो then बात आती है education system तो एक sector है, तो बात आ जाती है एक बड़े से लेवल पे जो कि हमारा पॉलिटिक्स चल रहा है आजकल इस पाकिस्तान का, और हम उसको इस तरह से देख सकते हैं कि जो लोग उसमें अपना इनपुट देना चाह रहे हैं फॉर बेटरमेंट, उनके साथ क्या हो रहा है, दे आर लाइक बीइंग किल्ड और बीइंग जेल्ड। सो अब हम सिर्फ एजुकेशन सिस्टम की बात करें जहां हम अपना इंडिविजुअल सोच लेके आना चाह रहे हैं और कह रहे हैं कि हम एक ऐसी सोसाइटी या एक ऐसा चैनल बनाएं जिसके थ्रू हम एजुकेशन को अपने मुताबिक इम्पार्ट करें। तो ये तो बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है, क्योंकि हम अपने सेक्टर में लेके ये बात कर रहे हैं, जबकि ये हमारे सेक्टर में बात नहीं है, ये तो एक पूरा मतलब पॉलिटिकल सिस्टम पे ये एक मसला है। तो ये जो चैलेंज है, पहले ही हम एक चैलेंज इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ पाकिस्तान देख रहे हैं, और देखते हुए भी हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। सिंपली like if we see the gas जो पहले इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम था, अब गैस का भी प्रॉब्लम है। like we are doing nothing, we are even not questioning these things, and अब हम उनको देख के हम आंखें बंद कर रहे हैं। तो अब आप कह रहे हैं कि मतलब इस तरह का हम कोई स्टेप लें एजुकेशन में, तो क्या ये एक बड़ा चैलेंज नहीं होगा? क्या हम कर पाएंगे भी या नहीं? और अगर हम कर पाएंगे तो कैसे कर पाएंगे इसको आगे? आप इसको कैसे देखते हैं? दिस इज माय क्वेश्चन। नहीं, बहुत अच्छा सवाल है आपका कि ये शो कर रहा है कि आप वाकई कुछ करना चाह रही हैं या चाह रहे हैं। जब हम ये सवाल करते हैं ना क्या हम कर पाएंगे, इट मीन्स कि हम सोच तो रहे हैं, हम सोच तो रहे हैं, हम इस बात पर तो क्लियर हैं कि कुछ गड़बड़ है। हाँ, हमारी उतनी ताकत है नहीं है, कैपेसिटी है नहीं है, लेकिन एक बात जो प्री डिसाइडेड है कि देयर इज समथिंग, कुछ तो है जो गलत है। ये फर्स्ट स्टेप होता है किसी भी एक्शन के लिए। देखिए, जब आप एक्शन करते हैं ना, एक्शन यहाँ होता है, आपको कहाँ जाना है, क्या करना है, पहले यहाँ होता है। अगर आप मेंटली क्लियर हैं कि आप क्या करना चाहते हैं और आपने क्या करना है, तो आप कर जाएंगे। लेकिन अगर आप मेंटली क्लियर नहीं है, आपको लगता है क्योंकि कंफ्यूजन है, आपका कभी भी एक्शन ना हो पाएगा, ना वो सक्सेसफुल होगा। हमें बात करने की जरूरत है। हमारे पास ना काउंसिल्स है, हमारे पास ना स्टूडेंट्स यूनियंस हैं। पाकिस्तान के किसी इदारे में स्टूडेंट यूनियन नहीं है।
जनरल ज़ियाउल हक ने जब से पाबंदी लगाई है 83-84 में, उसके बाद से स्टूडेंट्स यूनियंस वजूद ही नहीं रखती। तो आप या पूरे पाकिस्तान के जो करोड़ों स्टूडेंट्स हैं, उनके मसाइल, उनकी चीजें या वो जो कुछ करना चाहते हैं वो कहाँ जाएं, क्या करें? नाइयों की यूनियन है यहाँ पर, ट्रक ड्राइवरों की यूनियन है, कंडक्टरों की यूनियन है, रिक्शा वालों की यूनियन है, मर्चेंट, वो बीफ मर्चेंट, क्या वो गोश्त वालों की, कसाईयों की यूनियन है। पढ़े लिखे बाशऊर स्टूडेंट्स की यूनियन नहीं है, क्योंकि अगेन ये उस पॉलिटिकल सिस्टम के लिए खतरा है कि जिस पर पाबंदी लगाई गई थी कि आप रेडिकल हैं, यंग हैं, आप लोग बाहर निकलेंगे, मुतालबात की बात करेंगे, तो उनको डर लगता है, इसीलिए उन्होंने आपको रोक दिया। और रोकने के बाद इस तरह क्या है कि भाई आपको तो इस पॉलिटिक्स का हिस्सा ही नहीं बनना। जैसे कि ना ये बहुत ही गलीज सी चीज है, बहुत खराब चीज है, जबकि मैंने कहा कि पॉलिटिक्स इज एवरीथिंग, एवरीथिंग इज पॉलिटिक्स। फेडरल मिनिस्ट्री है ना एजुकेशन की, पॉलिटिकली तो है, क्या नॉन पॉलिटिकल है? उसका वजीर कौन होता है? राना तनवीर हो या शफकत महमूद हो, कोई भी हो, खुर्शीद शाह हो, पॉलिटिकली तो है ये सब। हेल्थ, आप कुछ भी करते रहे, हेल्थ हेल्थ पॉलिटिकल इशू है, एजुकेशन एक पॉलिटिकल इशू है, हेल्थ भी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंडर में आता है, अगेन एक पॉलिटिकल पार्टी है, उसका मैनिफेस्टो है जिस पर इलेक्शन जीत कर आती है। तो ये सब चीजें एसोसिएटेड विद पॉलिटिक्स है, तो इसीलिए आपका पॉलिटिक्स में आना जरूरी है, पॉलिटिकल क्वेश्चन रेस करना जरूरी है। आपको लगता है कि ये एजुकेशन, ये हेल्थ या आपकी जिंदगी के और सारे मसाइल ये नॉन पॉलिटिकल है ना, इच एंड एवरीथिंग इज पॉलिटिकल। तो आपने पॉलिटिकली खुद को गैदर करना है, अपने हमख्याल लोगों से बात करें, अपने लाइक माइंडेड लोगों से बात करें, फेसबुक पर ग्रुप्स हैं, व्हाट्सएप के ग्रुप्स हैं। आखिर आप कराची स्टैंड्स विद पैलेस्टाइन ग्रुप का हिस्सा तो नहीं है? एक ग्रुप बना, उसमें हमख्याल लोग आए और 1000 लोग जमा हो गए। यूरोप में क्या हो रहा है, न्यूयॉर्क में लोग कैसे बाहर निकल रहे हैं? आपको अंदाजा है कि ये जो प्रोटेस्ट होते हैं बड़े बड़े, ये वॉल स्ट्रीट पर ये निकलते हैं, ये कभी कहाँ क्या कर रहे हैं? ये इसी तरह आजकल फोन, मोबाइल, फेसबुक, आप उससे एग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं, आप उसका पार्ट बनिए। कोई तो ऐसी एक्टिविटी होगी जो आपको लगता है कि आपको करनी चाहिए, कोई भी एक ऐसी एक्टिविटी किसी भी तरह की, आप देखिए कि वो लोग कौन है जो इस तरह की एक्टिविटी कर रहे हैं, आप उनका पार्ट बनिए, अपना इनपुट दीजिए और लोगों को उसमें शामिल कीजिए। ये रास्ते हैं। देखें, हम डायरेक्ट रिजल्ट ओरिएंटेड जो सोचते हैं ना कि क्या होगा, ऐसे और ऐसे सोचते हैं। इस ऐसे और ऐसे के जो बीच में है ना, बहुत सारी चीजें हैं, उन पर चलने की जरूरत है, और फिर हम खुद ब खुद सीखते भी जाएंगे। ये कि यहाँ से यूं एक एक्सपेक्ट करना कि आप उसको ऐसा जवाब दें कि हाँ या ना, हाँ या ना दुनिया में तो नहीं है, वो तो एक प्रोसेस है, पूरा एक प्रोसेस है, एक पूरी डायलेक्टिक्स है ना, ये एक जदलियात है पूरी, जिसमें इर्तका है, जिसमें नशोनुमा है, जिसमें तब्दीली है, चेंज, ग्रोथ, ये डेवलपमेंट, ये सब चीजें साथ साथ चलती हैं, फिर जाके कोई कंक्लूजन हमारे सामने आता है। और कोई? जी थैंक यू सो मच सर। थोड़ी बहुत रीडिंग जो मेरी है फेलो फ्रायर की, और इसके कुछ कॉन्सेप्ट्स जो मैं अपने थिंकिंग का पार्ट बना के चल रही हूँ, उसमें मुझे ये समझ में आया है कि इन्होंने जो बातें कही है, they have remained more of a theory. Of course everybody takes it and अपने तरीके से उसको implement करते हैं, but me as a teacher having 3, 4, 5 or 10 or 15, 45 students with me for the next 1 year in my classroom, मैं इनकी जो theory है उनको मैं जो फर्स्ट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है, क्रिटिकल कॉन्शियसनेस का, लेट्स से कि मुझे अवेयरनेस भी है। नाउ हाउ डू आई टेक दैट टू द लेवल कि जहाँ पे मैं एक्शन कर सकूं विद दोज 45 चिल्ड्रन जो मेरी क्लासरूम के अंदर है। एंड आई एम आस्किंग दिस एज अ टीचर जिसका लेट्स से कि स्कोप ऑफ जो इन्फ्लुएंस है या एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है वो विद इन द क्लासरूम है, डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली टू द आउटर वर्ल्ड। थैंक यू। देखें, अगर आप बच्चों को सिखाना चाहते हैं, जो आप चाहती हैं कि बच्चे ये सीखें, तो बच्चे गैर शऊरी तौर पर ज़्यादा सीखते हैं, बजाय कि हम उन्हें एक फॉर्मली कोई चीज़ करवाएं। आप कोई ऐसी चीज़ कीजिए जिससे बच्चा आपको देखे कि आप क्या कर रहे हैं। आखिर हम अपने घरों में भी तो कुछ ना कुछ करते हैं, हमारे बच्चे अपनी अलग अलग आइडेंटिटी कैसे रखते हैं?
वो हमें देखते हैं, पेरेंट्स को फॉलो करते हैं कि पेरेंट्स कहाँ जा रहा है, मंदिर जा रहा है, मस्जिद जा रहा है, बच्चा देखता है ना, फिर वो अपनी रास्ते उसी तरह सेट करता है। तो गैर शऊरी तौर पर बच्चों को उस कल्चर से वाकिफ कराना जरूरी है। मतलब आप क्लास में कोई एक्टिविटी, अगर छोटी क्लास है बच्चों की, मैं बच्चों की बात कर रहा हूँ, तो कोई भी एक वाकया होता है दुनिया में, कोई भी एक मामला है या कोई भी कोई साइंटिफिक इन्वेंशन है, तो आप उस पर बात कीजिए। मतलब आप इस पर बात कर सकते हैं कि जी अभी 2023 जो इस साल का नोबेल अवार्ड किस किस को मिला है, हम इस पर बात कर सकते हैं। लिटरेचर में किसको मिला, साइंस में किसको मिला, पीस का किसको मिला, क्यों मिला, और ये कौन लोग हैं, और ये किस तरह सोचते हैं। देखिए सेकेंड वर्जन, दुनिया में फलस्तीन के लिए बातें हो रही हैं, कर रहे हैं लोग, लेकिन ज्यूज क्या कर रहे हैं, फलस्तीन के साथ सॉलिडेरिटी कर रहे हैं इस वक्त जेविश वॉइस फॉर पीस के नाम से। बच्चों को बताना चाहिए कि सब यहूदी खराब नहीं होते हैं, ये लोग देखो फलस्तीनियों के साथ खड़े हुए हैं। बीजेपी एक अलग चीज है, स्टेट ऑफ इंडिया एक अलग चीज है, लेकिन अगर वहां पर 100 अदीब और दानिश्वर कोई लेटर लिखते हैं बीजेपी के अगेंस्ट, हमें अपने बच्चों को बताना चाहिए कि सब उस तरह के एक्सट्रीमिस्ट नहीं है, मुस्लिम्स को सपोर्ट करने वाले वहां भी हैं। और फिर देखें, रियासत और अवाम दो अलग अलग चीजें। रियासत रियासत है, अवाम अवाम है। मेरी रियासत मुझसे नहीं पूछती है, ना मैं उसका जिम्मेदार हूं, ना मुझे कोई उसका जिम्मेदार ठहरा है। अब जो बम्बारमेंट हो रही है, एक आम जीव उसका जिम्मेदार नहीं है। ये हमें बच्चों को बताना चाहिए। डिफरेंट डिफरेंट वॉइसेस को हमें एम्पलीफाई करना चाहिए। जो डिसेंटिंग वॉइसेस हैं, हमें वो सामने लानी चाहिए कि सब इस तरह नहीं है। तो डाइवर्सिटी फिर आएगी अगर आप वो तस्वीरें दिखाएंगे, वो प्रोग्राम्स करवाएंगे, उनके बारे में बताएंगे। और फिर आपका ताल्लुक किसी भी कम्युनिटी से हो, आप हर जगह जाएं अपने बच्चों को लेकर। आप मंदिर जाएं, चर्च जाएं, गुरुद्वारे जाएं, ताकि उनको लगे कि ये भी हमारी तरह ही इंसान है, इनकी सींगें नहीं होती हैं। हमारे लोग तो मिलते नहीं है, ये कौन लोग हैं, कैसे लोग हैं, क्या खाते हैं, कैसे होते हैं। एक अजीब व गरीब मिथिसाइजिंग सी चीज ना, मतलब उसको, इस मिथिसाइजिंग को डी मिथोलॉजाइज करने की जरूरत है कि भाई डीकंस्ट्रक्ट करो खुद को भी करें, स्टूडेंट्स को भी करें, अपने घर वालों को भी करें। देखिए पहला जो खराब यूनिट है ना, वो घर का है। बच्चा 2, 4, 6 साल तक तो घर से ही चीजों को लेता है। अगर घर में पेरेंट्स ही बाइज्ड हैं दीगर रिलीजन के हवाले से, दीगर कम्युनिटी के हवाले से, दीगर मसलकों के हवाले से, तो बच्चे तो वैसे ही पलेंगे, वो छाप लेके आएंगे। मतलब अगर मैं किसी चीज के अगेंस्ट हूँ तो ज़ाहिर है उसके असर मेरे बच्चों पर तो जाएंगे ना। तो हमें घरों को ठीक करना है, खुद पेरेंट्स को भी डीकंस्ट्रक्ट होने की जरूरत है। टीचर्स तो फिर बात का मरला है, वो तो फिर स्कूल में बच्चा आएगा, पढ़ेगा और टीचर्स के अपने ख्यालात सुनेगा। फिर हम हर सब्जेक्ट में इस्लामियात जरूर पढ़ाते हैं, हमारे हर सब्जेक्ट में इस्लामियात का कंटेंट जरूर होता है। चाहे पाकिस्तान स्टडीज हो तो उसमें भी इस्लामियात, उर्दू पढ़ा रहे हैं उसमें भी इस्लामियात, इंग्लिश पढ़ा रहे हैं उसमें भी इस्लामियात। मतलब इंग्लिश के सब्जेक्ट्स आप देखें ना, कहाँ से शुरू होते हैं। आप कंटेंट देखे, कोर्स कंटेंट देखे, मैं नहीं कह रहा हूँ, कोर्स कंटेंट देखिए, उर्दू का कहाँ से शुरू होता है। लिटरेचर पढ़ाया जाना चाहिए ना, न कि इस्लामिक हिस्ट्री को उर्दू में, इस्लामिक हिस्ट्री इंग्लिश में। मतलब अब फिर हमारा बच्चा ना उर्दू जानता है ना इंग्लिश जानता है, ज़ाहिर है हम कुछ और पढ़ा रहे हैं उसे इन सब्जेक्ट्स के नाम पर भी। साइंस हम नहीं जानते हैं, साइंस की कोई बात होती है तो उसको भी हम जो है वो एक थियोलॉजिकल चीज बना देते हैं। तो भाई थियोलॉजी अलग चीज है, साइंस अलग चीज है। तो थियोक्रेटिक नहीं होना चाहिए साइंस को, हमें भी नहीं होना चाहिए। तो दुनिया में हर इंसान बराबर है, हर इंसान एक जैसा है, ये हमारी सोच होनी चाहिए। हम देखिए लोग डिफरेंट होते हैं, उनकी आइडेंटिटीज को कबूल करना, एक्सेप्ट करना, ये हमारे अंदर होना चाहिए। प्लूरलिज्म, तकसीरियत, कसरत है, गोरा है, काला है, सुन्नी है, शिया है, हर तरह का है, हिंदू है, मुस्लिम है, पठान है, पंजाबी है, शिना है, बल्ती है। एक्सेप्ट करना है, एक्सेप्ट करना है सबको। ये नहीं कि नहीं करना, ये कौन है जी, ये फिला है, ये बदख्शानी है, ये वो है ना, बराबर है सब, सबको एक्सेप्ट करना है। तो जब जाके बातें आएंगी, ये घरों से शुरू होनी चाहिए। घरों में अगर हम नहीं कहेंगे ना फिला 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 फिला, बच्चे सेट रहेंगे हमारे। और डिस्करेज करें, अगर वो कोई ऐसी बात लेके आते हैं अपने स्कूल से, अपने एनवायरनमेंट से, डिस्करेज करें। पेरेंट्स, इंडियन फिल्म चल रही है, ये तो बड़े खराब लोग होते हैं, उनके मजहब का नाम लेके कहते हैं, तो बच्चा क्या सीखेगा, बच्चा तो यही सीखेगा, फिर वो जुड़ नहीं पाएगा। मेरा ख्याल है काफी